السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، دیکھیے، میں نے اس کو منع کیا کہ تو ابھی بات مت کر۔ یہ ایک مفتی ہے اور اس مفتی کا نام ہے مفتی امجد قاسمی دیوبندی۔ یہ رہنے والا بھی دیوبند کا ہے۔ اب اتنی رات کو کال کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے۔ کیوں؟ دن میں ٹائم نہیں ملتا کیا؟ میں ان سے منع کرتا ہوں کہ بھائی تم مجھے جو ہے رات میں کال مت کیا کرو، مگر اس نے زبردستی کی، بات کرنے کی ضد جو ہے اس نے باندھ لی۔ میں نے اس کو منع بھی کیا، میں نے کہا یار سو جا، کیوں پریشان کر رہا ہے، ورنہ تیری راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، تو سو نہیں پائے گا۔ خیر بعد میں ایسا ہی ہوا، یہ بار بار مجھے کال کر رہا تھا، بار بار کال کر رہا تھا، بار بار کال کر رہا تھا۔ خیر یہ گفتگو تھوڑی لمبی تو ہے، یہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی، مگر آپ حضرات ٹائم نکال کر، وقت نکال کر اس کا دجال پن دیکھیں، یہ کتنا بڑا دجال اور شیطان ہے۔ یہ دیوبندی دھرم کے لوگ پتہ نہیں شیطان سے پڑھ کے آئے ہیں، کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، معاملہ کیا ہے۔ اتنی رات کو یار کال کرنا کیا ضروری ہے؟ بہرحال مسلمانوں، بس آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں ان بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو بیچارے دھوکے میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ بس آپ لوگ فیصلہ کر لیں، یہ شیطان فیصلہ کرے نہ کرے، یہ مانے نہ مانے، بس آپ مان جائیے۔ میں آپ لوگوں کے لیے کام کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ نکھری ہوئی بات آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بھائی میں کوئی اور بات نہیں پوچھ رہا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا کہ رسول اللہ کا جو دشمن ہے وہ مومن ہے یا کافر ہے۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ جب یہاں پہ ٹاپک آیا، محبت پایا تو بڑی لمبی لمبی ڈنگیں مار رہا تھا، مگر جب بات آئی گستاخ رسول پر، جب بات آئی حضور کی شان میں توہین کرنے والا کون ہے، مسلمان یا کافر، بس اس کی زبان پہ تالا لگ گیا، خاموش ہو گیا، لایانی باتیں کرنے لگا، ادھر سے ادھر بھاگنے لگا۔ بس یہی چیز آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، کیا معاملہ ہوا کیا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کی ہٹ دھرمی دیکھیں، یہ ملا مفتی ہے، مفتی ہے، یہ مفتی مفت کا مفتی ہے۔ یہ میں کیا بولوں اس کو، میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میری زبان بہت زیادہ سخت چلتی ہے شیطانوں کے تعلق سے، میں نہیں بخشتا ہوں۔ بہرحال جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ گفتگو پورا سنیں، میں نے بہت محنت کی اور بہت سوچ بچار کیا اور اس لیے اس کو ایک ساتھ ڈالا تاکہ لوگ پوری گفتگو سن ہی نہیں پاتے ہیں۔ اس میں اگر ہوگی تو سارے لوگ پوری آڈیو سن لیں گے، پوری گفتگو سن لیں گے، پوری بات چیت سن لیں گے۔ خیر اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہلو جی ہیلو، السلام علیکم، جی کون صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں بڑھیا الحمدللہ۔ مفتی امجد قاسمی بول رہا ہوں، جی مفتی امجد قاسمی بول رہا ہوں۔ مفتی امجد قاسمی، جی کہاں سے؟ دیوبند سے۔ دیوبند سے؟ جی اچھا، دیوبند مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ دیوبند کا رہنے والا ہے، رہنے؟ پڑھاتا نہیں ہے۔ اچھا اچھا، کیا جی کرتے ہیں؟ بس ایسے ہی گھومتا پھرتا ہوں۔ اچھا، جی کیا بزنس ہے؟ بزنس کوئی نہیں ہے، گھومنے ہی پھرنے کا بزنس۔ پھر بھی کچھ تو ہوگا نا گھومنے پھرنے کا تو۔ بس ایسے ہی، چونکہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے تو کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ بات تو صحیح ہے، جی میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ جی پھر بھی آدمی کتنا ہی امیر ہو دو پیسے کمانے کے لیے اپنا دماغ لگاتا ہے۔ اب یا تو آپ سے جھوٹ بولوں، سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ کہہ رہا ہوں، یا تو آپ سے جھوٹ بولوں کہ میں کچھ کر رہا ہوں،
तब आप मानेंगे। जब बता रहा हूँ फिर भी नहीं मान रहे। अच्छा जनाब, जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों इस वक्त कॉल किया है? आपका एक यूट्यूब पर एक प्रोग्राम चल रहा है अच्छा कि कोई भी देवबंदी आलिम या कोई भी जाहिल या कोई मुझसे बहस नहीं कर सकता या मुझसे अकीदे में बात नहीं कर सकता। मैं भी एक देवबंदी था, तो सारी बातों पर मैं भी कुछ आपके नजरियात जानना चाह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ आपसे बात करने के लिए। आपने दिखाया है कि मुफ्तियाना से फलाने हैं, मैंने उनको जलील कर दिया, ये कर दिया। मैं तो कुछ नहीं जानता, मैंने तो लेकिन मैं नहीं कहा कि मैंने किसी को जलील कर दिया। मैंने कहा लिखा है मैंने कि उसको आपका यूट्यूब चल रहा है उसमें कि आपने इसमें दिया है कि आखिर तक आप सुने। अच्छा उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया अच्छा और कॉल काट दी। मैं आपके कॉल आप रात तक चलाएंगे, पूरी रात तो मेरी कॉल नहीं कटने की। जनाब, मैं आपने ये भी सुना होगा कि मैं देवबंदियों से रात में बात नहीं करता हूँ। नहीं, आपने उसमें ही लिखा हुआ है, आपने उसमें ही कहा कि मैं 2 महीने से बात नहीं करता हूँ। अभी से आपकी हालत टाइट होने लगी। अभी से आपकी हालत टाइट होने लगी क्या? जब आप जो आप बात कर सकते सुबह हैं बात तो करें। रात टाइट कहाँ से आ गई? आप चुप रहिए, आप चुप रहिए भाईजान, आप चुप रहिए। जी आपको नहीं कह रहा। देखिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा कि जी। अभी फिलहाल सोते हुए शेर को ना जगाएं। शेर तो चाहे सोता हुआ हो चाहे जगता हुआ, शेर तो शेर होता है। और शेर से एक अदना सा आदमी बात करने के लिए तैयार तो शेर भाग रहा। मैं शेर तो इसलिए मना भागता नहीं, कर शेर रहा तो हूँ हर वक्त कि तैयार शायद रहता है। रात भर आपको नींद ना आएगी अगर अभी मैंने बात शुरू कर दी तो। आप पूरी रात आ जाएं, ठीक है? अच्छा, हाँ, पूरी रात आप बात कर लें, पूरी रात हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने जी। अपना नाम बताया कि मुफ्ती, क्या नाम बताया? हम तो बड़े अकीदा अच्छा है आपका, बड़े ज़हीन फतीन हैं। इतनी जल्दी भूल गए आप मेरा नाम? हाँ। अभी मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ आप भूल गए। तो इसमें जी, बड़ी अकीदा आपका तो बड़ा पेवर है, बड़ा टाइट है, और 5 मिनट नहीं हुआ मेरा नाम आप भूल गए। कैसा आपके पास कैसा ज़हन है, कैसा अकीदा आपका है? ये कोई अकीदे की बात है क्या? ये कोई ज़हन, ये कैसी है, ये कैसे ज़हन की बात है कि आदमी के ज़हन पे अकीदा रखा हुआ और फिर बात कर दे कि हम तो सब जानते हैं, और 5 मिनट की बात याद न रहे तो पहले कैसे याद रहेगी? कोई जरूरी है कि आप नाम बताए या कोई बंदा नाम बताए और उस नाम को जो है आदमी अपने जहन में बसाए? जरूरी है, वो क्यों नहीं जरूरी है भाई? थोड़ा जब अभी बात चल रही है, पहले की बात भी नहीं है, ज्यादा दिन की बात तो है नहीं। अभी मैंने आपको बात, आप मुझे आप अपना नाम मुफ्ती बता साहब है दीजिए, ना? उसके बाद दो सुनिए, आप मुझे अपना नाम बता दीजिए और उसके बाद मुझसे सुन लीजिए। आप इतनी हल्की सी बात के लिए बात इधर से उधर फेर रहे हैं। तो ऐसा है, सुबह बात करें? जी, सुबह बात करें? सुबह? नहीं सुबह क्यों, मैं अभी हाजिर हूँ, तो सुबह अभी क्या मतलब? अभी हाजिर है? जी मैं कब तक हाजिर रहे? कब तक हाजिर रहे? आपको मैंने फोन किया है और जी जीशान भाई, आप चुप रहिए, आप सिर्फ खाली सुनते रहिए। चलिए बोलिए हाँ, तो अभी बात करेंगे, नहीं मानेंगे आप? जो दूसरे हजरत हैं उनको, उन्होंने क्या कहा सुना दीजिए, क्या कहा उन्होंने, बस सुन पता, वो आपको समझा रहे हैं कि अभी रहने दीजिए। अच्छा, हाँ, नहीं तो फिर नींदें उड़ जाएंगी, पता नहीं कब तक नींद होगी। ये बात है। नींद तो उड़ जाएगी कि गायब हो जाएगी, वो तो अल्लाह ही जानता है। हम अच्छा। जी तो आज आप मुझसे पूछ के ही रहेंगे मेरे में जो नजरियात है। नहीं, आपसे मैं पूछूंगा नहीं, आपने चैलेंज किया है ना कि कोई भी देवबंदी मुझसे अकीदे के सिलसिले में बात नहीं कर सकता। जी हाँ, आपने ये मैं बात अब इसमें कह कही रहा है। हूँ कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते। चलिए किसी की बात तो छोड़िए, मैं कहता हूँ कि आप मुझसे जी। किसी टॉपिक पर बात नहीं कर सकते। अगर कोई टॉपिक चुन के लेके आए हो, रट के लेके आए हो, कोई टॉपिक तो आप मैं नहीं मुझसे रटा हूँ। आपको जो सवाल करना हो, बंदा हाजिर है सवाल करने, जवाब देने के लिए। जिस पर अच्छा। आप खूब अच्छा वो हासिल रखते हो, जिस पर भी आप चाहते हो गुफ्तगू कर ले, मैं कहीं से इब्तिदा नहीं करूंगा, आप इब्तिदा करें। मैं कहीं से इब्तिदा नहीं करूंगा, आप जहां से चाहें अपने अकीदे को जाहिर करने के लिए, हमारे अकीदे को जाहिर करने के लिए कहीं से आप सवाल करें। मैं कोई अच्छा, टॉपिक पे आपसे बात नहीं करूंगा।
آپ صرف یہ آپ نے کہا ہے، میں اسی پر آپ کو فون کیا ہوں کہ آپ نے کہا ہے مجھ سے کوئی بھی دیوبندی بات نہیں کر سکتا، اس کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں. اور بھی کچھ سنا ہوگا آپ نے جب یہ بات. میں اسی پر میں بات کر رہا ہوں، آگے بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ سے صرف اسی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے چیلنج تو دیا. ایسے تو بات کر ہی رہے ہیں آپ، ایسے تو بات کر ہی رہے ہیں آپ. تو میں میں چیلنج کے لیے حاضر ہوں. پوری بات بولی ہے، میں نے جو پوری بات بولی پوری بات آپ بول دیجیے. نہیں، آپ نے کہا ہے کوئی دیوبندی عقیدے کے سلسلے میں مجھ سے بات نہیں کر سکتا. میں حاضر ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے. چلیے کس عقیدے پر بات کریں گے بولیے. آپ نے جو چیلنج دیا ہے وہ بتائیے، چیلنج آپ نے کیا دیا ہے؟ میں نے تو یہ کہا نا، جس عقیدے پر دیوبندی کو مہارت حاصل ہو، جی ٹھیک ہے، تو آپ کو کس عقیدے پر کس ٹاپک پر مہارت حاصل ہے ذرا بتا دیں. حضرت میں نے آپ سے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی بھی بریلی مجھے ہرا نہیں سکتا یا کوئی بھی بریلی مجھ سے پنگا نہیں لے سکتا. یہ آپ تو نے پھر آیا کیوں ہو یار؟ آپ نے کوئی مشن بنایا ہوگا نا کہ میں فلاں موضوع کوئی پر مشن میرا نہیں ہے، میرا کوئی مشن نہیں ہے. آپ کا مشن ہے، اس مشن پہ میں آیا ہوں. آپ نے کہا میرے مشن پہ آپ بات کریں. مجھ سے بات نہیں کر پائے گا عقیدے کے سلسلے میں. میں حاضر ہوں، آپ کا جس عقیدے کو آپ کو ظاہر کرا ہوں آپ کرا لیجیے. چلیے دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہوں مفتی صاحب، جی آپ ایک بار اگر اپنا نام بتا دیں. چلیے، میں یہ سمجھوں گا کہ کوئی ہے جو اپنے آپ کو بڑا عقیدہ والا سمجھتا ہے، سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی دوبارہ نام پوچھتا ہے. مفتی محمد امجد قاسمی. مفتی محمد امجد قاسمی. جی اچھا، آپ کا نمبر ہے 63 872 88 693. جی ٹھیک ہے، 63 87 28 86 93. جی. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ شاید آپ دھوکے میں انجانے میں دیوبندیوں کے ساتھ آپ جان بوجھ کر نہیں ہیں، شاید اس لیے آپ شاید بریلیوں کے ساتھ جان بوجھ کر ہوں. الحمدللہ. جی چلیے، اچھی بات. علماء دیوبند میں سے ہمیں بھی سن لیجیے، ہماری بھی سن لیجیے. الحمدللہ ہم بھی. تو یہ کون سی بات ہو رہی بھائی؟ آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کوئی بات کریے. یہ غلط بات یہ نہیں ہے. دیکھیے، فون کاٹو، سننے کا فون کاٹو، فون کاٹو، کاٹ. بس ہو گیا، فون کاٹو. ہو گیا بس اتنے چیلنج. تم نے کہا تھا کہ تم کوئی بات کرو. پہلے تو تم یہ بتا نہیں رہے ہو کہ کس موضوع پر تم بات کرو گے، چیلنج. اور جب میں کچھ بول رہا ہوں تو بیچ میں روک کے. الحمدللہ دیوبندی مسلک پر ہیں. ارے تو پاگل آدمی، جب میں بات شروع کر رہا ہوں تم مفتی ہو کہ مفتی ہو؟ ایسا نہیں ہے. تو آدھی ادھوری بات پہ کیسے بول رہے ہو؟ آدھی ادھوری پہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے جو آپ سے کہہ دیا اس کو میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا میں ہوں ہوش حواس کے ساتھ، میں بھی جواب دے رہا ہوں. الحمدللہ جواب دو. دیوبندی مسلک پر ہوش حواس کے ساتھ ہوں. اچھا جی ہو گئی آپ کی بات. ہاں تو آپ اب ایسی بات مکمل کیا کیجیے. چلیے میں نا ادھر سے ادھر تو کیا کریں، آپ مت کرا کریں. جو بات آپ ابھی آپ کہہ رہے تھے میں تو حاضر ہوں. اور جب میں شروع کروں گا تو نیند اڑ جائے گی، غائب ہو جائے گی، فلاں. اب اس کے بعد اگر فون رکھ، یہ کیا مطلب ہے؟ بیچ میں بولنے والا مجھے بہت برا لگتا ہے. جب سامنے والے کی بات پوری ہو جائے تب دوسرے بندے کو بولنا چاہیے. اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو گئی پوری؟ جی پوری ہو گئی. اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی آپ محبت کرتے ہیں؟ نبی اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. جتنا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے قرب رکھتے ہیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی دنیا میں نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے. اگر اللہ کے نبی کا وجود دنیا میں نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی امجد قاسمی صاحب جی بولیے. بہت اچھی بات کہی اور میرا دل خوش کر دیا آپ نے مفتی صاحب. جی حق بات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے. رکھیے گا جب کہیں بات آئے گی جیسے آپ نے کہا نا تو اس وقت بھی سننے کا جذبہ رکھیے گا. مت کہیے گا بس ایک بات کہوں گا آپ سے، سنیے آپ کی بات کو، اس لیے آپ بھی سنتے رہیے گا. دیمتوں کا آگے چل کے آپ کہیں کہیں نا، اس لیے کہ آپ نے شروع میں یہ بات کہہ دی نا رکھ، اس لیے مجھے یہ بات ڈاؤٹ ہو رہی ہے کہ آگے چل کے آپ پھر یہ نہ کہنے لگے. ایک بات ہی کہوں گا، جب تک میری بات پوری نہ ہو
जी बीच में न टोकना, बीच में बोलना। मेरी भी ऐसी जब मैं आदत कुछ होती पूछूं, है, वो हाँ, बात ऐसी जब मैं कुछ चलती है पूछूं हुजूर, जी, बात जब मैं ऐसी कुछ चलती पूछूं है। आपका जवाब देना है। जी ठीक है भाईजान, बोलिए 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 आप। ठीक है। तो आप उलमाए देवबंद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? हम किससे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मोहब्बत करेंगे, और अपने वालिदैन से नहीं मोहब्बत करेंगे, अपने चाहने वालों से नहीं मोहब्बत करेंगे, और किससे करेंगे? आप ये बताएं, मोहब्बत के दर्जे कितने हैं, आप बता सकते हैं? मैंने ये बोला है कि आप मैं उलमाए देवबंद से जवाब ज्यादा दे रहा मोहब्बत हूँ। करते हैं मैं या सुनिए, हर चीज मेरी का बात जवाब कर नहीं में नहीं होता। सुन लीजिए, हर चीज का जवाब शायद- नहीं में नहीं होता हुजूर, मेरे सुन लीजिए बात, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। हर चीज का जवाब नहीं में नहीं होता। अगर आपको पानी पीना है और जूस भी मौजूद हो, तो आपसे कहा जाएगा कि आप पानी पिएंगे कि जूस? वो कहेगा भाई ये क्या बात हो गई, हमारा दोनों दिल चाह रहा पीने के लिए, तो आप कहें नहीं एक ही मिलेगा, ये कोई बात हो गई? हर चीज का जवाब नहीं में नहीं होता। शायद आप चीज मेरी का बात को जवाब नहीं नहीं समझ मिलना पाए। चाह रहे हैं कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं कि अपने देवबंदी से मोहब्बत करते हैं? शायद आप मेरी बात को ही नहीं समझे। आप जो मुझे कहना मैंने ये पूछा है कि आप उलमाए देवबंद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? मैंने ये पूछा है। मैंने ये नहीं पूछा कि आप उलमाए देवबंद से मोहब्बत करते हैं या रसूलुल्लाह से। मैंने ये मोहब्बत के दर्जे अलग हैं, मोहब्बत के हर जगह दर्जे अलग हैं, तो वही जानना मालूम चाहता होना चाहिए। मोहब्बत के आपको दर्जे मालूम है कितने हैं? वही जानना चाहता हूँ। नहीं आप जानते, आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं अच्छा। आपका सवाल का जवाब दे दूंगा। देखिए मुसलमानों, ये मुझसे बात करने आए थे और मैंने मुफ्ती साहब से कहा था कि ऐसा है, आप बात ना करें वरना नींदें उड़ जाएंगी। अब मुफ्ती साहब जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे आपने जो सवाल किया है उसी सवाल को मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मोहब्बत के आप दर्जे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि मैं हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ या देवबंदी से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप मुझे मोहब्बत के दर्जे बता दीजिए, मैं अभी आपको फौरन बता दूंगा मैं हुजूर से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ या देवबंदी से करता हूँ। मैंने मुफ्ती साहब से पूछा है, नहीं, और ये हदीस भी है, मैं हदीस भी पेश करूंगा। हदीस का जवाब मैं खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप वही जवाब हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला से जो है इम्तिहान लिया। अल्लाह के बंदे मेरी बात सुन लीजिए, आपने मेरे जवाब मुझसे मांगा, मैं आपसे भी मांग रहा हूँ उसी पे। मेरा जवाब देंगे, मैं फौरन जवाब दूंगा। आपने कहा है कि आप अरे तो मैं थोड़ी मैंने या देवबंदी से, मैंने कुछ पूछा है आपसे, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। ये तो कोई बात ही नहीं है, आप मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हो। आपकी बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह भाई मुफ्ती साहब जी, नींदें उड़ जाएंगी, होश खराब हो जाएंगे। बड़े बड़े मुफ्तियों की ना वो तो बड़े दोनों रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब पे आएगा, यूट्यूब पे आएगा। अच्छा ये बताइए, चलिए वो चीज नहीं बता रहे हैं कि आप किससे मोहब्बत करते हैं, ये आपकी अपनी मोहब्बत है। आप इसका जवाब दे दिए कि मोहब्बत की किस्में कितनी है। मेरा जवाब आपको फौरन मिल जाएगा। आप बताइए, चलिए कितनी किस्में हैं? मैं क्यों बताऊं, सवाल आपने किया। अरे आपको इसका इतना इल्म नहीं। वाह भाई, सुनिए, आप है ना करिए, आपने मुझसे सवाल क्या अंदाज है मुताबिक आप क्या अंदाज है? मुझसे पूछिए कि आप किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप यूं कह दीजिए मुझे मोहब्बत मुझसे पूछ लीजिए, मोहब्बत किसे कहते हैं? नहीं मुझसे पूछ लीजिए। मैं पूछता रहा हूँ आपसे, मोहब्बत की किस्में आप बता दीजिए। फिर वही बात, मुझसे पूछ लीजिए ना जी, पूछ रहा हूँ आपसे मोहब्बत। मुसलमानों इनको ये नहीं मालूम है कि ये किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से करते हैं या अपने बाप से करते हैं या फिर उलमाए देवबंद से करते हैं। इनको नहीं मालूम है कुछ भी कि ये किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा तुम्हें नहीं मालूम? आप भी अगर मालूम होता है कि तुम किससे मोहब्बत करते हो तो बता देते। लोगों को मैं मालूम नहीं है मुफ्ती साहब लोगों को घुमाने की कोशिश नहीं करते, बड़े बड़े अच्छों का तेल निकल जाता नूर हसन के सामने। अच्छा, नूर हसन जैसे जानते हो, नूर हसन जैसे जब आदमी का नाम सुनते हैं तो फौरन कहते हैं वो फोन रख। उसके अलावा कुछ नूर हसन जैसे। तुम बीच में बोल रहे थे इसलिए मैंने, तुम बीच में बोल रहे थे मेरी बात। फोन रख कहेगा, फोन जितनी देर चला भाई इनके तो अभी से हालात गदले हो गए। मैं तो गदले नहीं भाई मेरे, अभी आप जो है अभी से हालात आपने ये नहीं मालूम कि ये मोहब्बत किससे ज्यादा करते हैं, ये अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उलमाए देवबंद से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इनको अभी मालूम ही नहीं है। कश्मीर से पंगा पड़ जाएगा उस दिन, तुम जो है ना
बस आओ आओ बका में रहोगे, बस उसके अलावा कुछ में कहीं नहीं रहोगे। तुम्हारे जैसे काश्मीरियों को कितनों को मैं लपेट चुका हूँ। तुम्हारे जैसे काश्मीर कितने पसीने छोड़ चुके हैं, और तुम भी पसीने में मेरे ख्याल से नहाने वाले हो। अरे अल्लाह के बंदे, मुझे लपेटो फिर बात करना। तुम जवाब ही कहाँ दे रहे हो? मैंने तुमसे पूछा कि तुम रसूल पाक से ज्यादा मोहब्बत करते हो, या अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हो, या उलमाए देवबंद से ज्यादा मोहब्बत करते हो? बताओ किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो? बोलो, जवाब ही नहीं दिया तुमने। तुम तो मुझसे उल्टा सवाल कर रहे हो। तो फिर मैं, आप मेरे सवाल का फौरन जवाब देंगे? तुम तो आप उल्टा मुझसे सवाल कर रहे हो, कितनी किस्में है, क्या नहीं है। अरे मैंने तुम मुझसे बात कर रहे हो ना। जी सुनिए, जिस चीज को आप जानते हैं वही सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, तो मैं उस बारे में आपसे पूछूंगा नहीं पूछूंगा? अच्छा, क्यों नहीं पूछूंगा बताइए? अगर मेरा हक तो नहीं है, आप मुझसे मालूम कीजिए ना कि आप मैं तो मालूम कर रहा हूँ। कितनी मरतबा कह दिया और आप वही बात बता रहे हैं। फिर मैं नहीं, कब से कह रहा हूँ कि आप मुझे मोहब्बत की किस्में बता दीजिए कि मोहब्बत की कितनी किस्में हैं। मोहब्बत के दर्जे हैं, मोहब्बत के मकाम है, किसी से कम होती है, किसी से ज्यादा होती है। मोहब्बत के मकाम है, दर्जे हैं, मैं जानता हूँ, मानता हूँ, इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा। अब आपने बता दिया ना। अब मेरा जवाब आप ले लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जायद अल्लाह के बाद हम किसी से मोहब्बत नहीं करते हैं। वो तो मैंने सुन लिया, मैंने यार यहाँ ये पूछा था। यही जवाब है। अल्लाह, अगर अहले क्या कहते हैं देवबंदी हजरात, अगर देवबंदी है, हम अल्लाह के नबी से ज्यादा उससे मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह के नबी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं बनिस्बत देवबंदी के। मेरा जवाब हो गया। जो आपने जवाब मैं समझ नहीं पाया कैसे, क्या बोले आप कि अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं? हम अल्लाह के नबी से हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत ज्यादा रखते हैं बनिस्बत देवबंदियत के। अच्छा, यानी जो उलमाए देवबंद है उससे ज्यादा मोहब्बत ना करिए, यानी बाद में करिएगा। सुन लीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत ज्यादा करते हैं बनिस्बत देवबंदी हजरात के। आप बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर खामोश, फिर जवाब दीजिएगा जो देना होगा। सुन रहे हैं? हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? आपने खामोश है लोगों कहा था, इसलिए मैं खामोश हो गया। हाँ तो नहीं तो कम से कम हाँ तो कहिए, हाँ नहीं तो कहिए। इससे भी मना कर दिया। मैं बोलने देता हूँ। चलिए बोल, मना कर दिया है क्या? भैया आप ही ने तो खामोश किया था मुझे। मैंने कहा है कि आप बोलिएगा नहीं, खत्म हो जाएगी तो आप जो सवाल करना हो करिएगा। इसके नहीं कहा कि आप खामोश रहिए, बिल्कुल जवाब तो दीजिए। हाँ नहीं कहा है, कहा नहीं है, ये तो कहेंगे। हाँ, जो मैं आप बोल रहे हैं वो मैं सुन रहा हूँ। आगे की बात बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? कोई बात पूरी करना चाह रहे हैं? हमारा अकीदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबिल में है, तो हम इस चीज को किसी भी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं बनिस्बत अपने के। आप बताइए दूसरा सवाल कीजिए। मेरा दिल खुश हो गया मुफ्ती अमजद कासमी साहब, जो अपने बाद में कहिएगा, ये बात बाद में कहिएगा। आप आगे बोलिए। आप अकीदा आपके देखने कितना अकीदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, मैं आपसे, जब आप इतनी मोहब्बत करते हैं, एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? सवाल तुम क्यों करोगे यार? तुम आए हो मुझसे बात करने के लिए, क्या आओ मैं तुमसे बात करूंगा और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। भाई चलिए हम जवाब अभी से पलटने लगे मुफ्ती साहब। नहीं, चलिए हम जवाब देंगे। चलिए अभी से पलटने लगे यार मुफ्ती साहब। हम जवाब देंगे। चलिए हम जवाब देने तैयार। माशाल्लाह, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। वक्त चूंकि हो सकता हो आपका पूरी रात खत्म होने के बाद फिर टाइम इंशाल्लाह मैं आपको पूरी रात ही दिया है, जब तक फोन नहीं कटेगा फिर से फोन करेंगे। वो घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, पता नहीं कितना टाइम होता है फोन में। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक रिकॉर्डिंग करके बात करेंगे। जी 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 जी, बात इंशाल्लाह। और मैं 100% कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, आज के बाद तुम मुझे कभी भी धोखे से कॉल नहीं लगाओगे, और मैं भी करूंगा ना तो गाली बकोगे बाद में। ये गारंटी ले लो, ये गारंटी ले लो। आज के बाद तुम किसी कासमी के सामने सोचोगे नहीं बोलने के लिए। ये वो नूरत है, समझ लेना इस चीज को। कभी भी किसी कासमी को अगर सुनोगे ना तो पीछे से सब कुछ आ जाएगा, ये सोच लेना। आप तो बदतमीज, आप तो जो है राय फरारी पे अभी से जा रहे हैं। आप तो गलत बोल रहे हैं। मैंने तो आपके आगे पीछे तो कुछ नहीं कहा। सवाल का मैंने जवाब दिया है, आपने सवाल माशाल्लाह, मैंने तो आपकी तारीफ की है। आप मुझसे कॉल नहीं करेंगे तो मैंने उसका जवाब दिया है कि आज के बाद आप किसी कासमी का नाम सुनेंगे तो पीछे से आपका सब कुछ बाहर होने लगेगा। कोई बात नहीं, चलिए। बहरहाल माशाल्लाह, अभी तक आपने बड़ी अच्छी और बड़ा जो है उम्दा अंदाज में बात की है, जवाब दिया है। अब आप मुझे इतना और बता दीजिए
کہ آپ جس اللہ کے محبوب سے، جس نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، وہاں پر علماء دیوبند کی محبت بھی ٹھیک ہی ہے اور کم ہے. علماء دیوبند سے زیادہ آپ اللہ کے اس محبوب سے محبت کرتے ہیں جن کا نام ہے حضور اکرم نور مجسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کوئی بندہ اگر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ان کی تعریف کرے گا یا توہین کرے گا؟ تعریف کرے گا. کیوں توہین کرے گا؟ تعریف کرے گا. جی. اچھا کیوں کرے گا؟ جی. اچھا یعنی پتہ چلا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے عیب تلاش نہیں کرتا. جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جیسے مان لیجیے آپ علماء دیوبند سے بھی محبت کرتے ہیں تو ان کی تعریف ہی کرتے ہوں گے. نہیں، آپ پہلے اسی پہ چلیں، اسی ٹاپک پہ چلیں. اسی ٹاپک پہ چل رہے ہیں. اسی ٹاپک پر چل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات کو ظاہر کریں. ارے بھائی نہ رکھ کے آپ نے یہ بات، آپ کو جو میں نے کہہ دیا کہ اچھا چلیے ایک منٹ آپ نے کہا محبت کئی طریقے ہے، بیٹے ہاں محبت کی کئی قسمیں ہیں. اسی چیز پر چلوں. ٹاپک بدل ہی نہیں سکتا. میرا دعویٰ ہے. نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. جی چلیے. ہاں آپ راہ اصل میں راہ آپ بدل رہے تھے، اس لیے میں آپ کو چلیے بات محبت ہی کی چل رہی ہے. نہیں میں نے کون سا ٹاپک اچھا کون سا ٹاپک بدل جائے؟ بولیے میں نے کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، کیا آپ دوسرے راستے میں آپ جا رہے تھے، اس لیے میں کہاں کون سے راستے میں جا رہا تھا بتائیے. جی وہ بات علم غیب ہو گیا آپ کو. آپ کو علم غیب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر آپ کو علم غیب ہو گیا. نہیں علم غیب تو نہیں ہوا. علم غیب تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں علم غیب ہو گیا. تو پھر آپ نے یہ مجھے کیسے جان لیا کہ میں کہیں دوسرے راستے پہ چلا گیا؟ اگر علم غیب آپ کے طرز کلام سے آپ نے یہ بات جی رائے فراری مت کیجیے. آپ نے یہ کہا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں دوں گا تمہارے سوالوں کے جواب. ارے اللہ کے بندے میں طرز کلام سے بتا رہا ہوں. آپ نے طرز کلام آپ کیا طرز کلام ابھی یار صبر کرے نا صبر ہو گیا. صبر تو ہے ہی. تو پتا چلا کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. جی جی. اچھا میں اگر علماء دیوبند کے لیے ہلکا سا جملہ تھوڑا سا سخت بول دوں آپ کو برا لگے گا یا نہیں؟ نہیں آپ میرے والدین کو کہتے ہیں تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر بات گستاخی ہو جائے گی ہم پہلے بھڑکیں گے اپنے. ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ. یعنی اپنے نبی کی شان میں ہم نہیں سن سکتے. جی ماشاء اللہ. میں اس بات میں جی میں آپ کو داد دوں گا کہ میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کسی سے کوئی بات سننا پسند ہی نہیں کرتا. مجھے بہت زیادہ جھنجھنی چڑھتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، میرا خون کھولنے لگتا ہے جو میرے نبی کی شان میں توہین کرتا ہے یا میرے نبی کے کمال کو گھٹاتا ہے. آپ کی اس پر میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جی. صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عائب کو، کسی چیز کو کوئی بھی برائی کرے گا کوئی برداشت نہیں کر سکتا. آپ نہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. آپ نہیں کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. یہ اپنے آپ کو اپنا ظاہر کریں. ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہے. میرا دل خوش کر دیا. اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. مفتی صاحب میرا دل خوش کر دیا آپ نے. واقعی حقیقت بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی ذرہ برابر بھی توہین کوئی برداشت نہیں کرے گا. جی. چاہے وہ ایک رائے کے دانے برابر ہو، ایک ذرے کے برابر ہو، ایک بال کا جو لو ہے دیا. اب اس پر اب تو بات ختم ہوگی. تو اب آگے اب تو بات ختم ہوگی. چلیے. اچھا ایک چیز، آپ مفتی ہیں اور بڑے اچھے سے آپ بات کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. اگر کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کر دے تو کیا توہین کرنے والا مسلمان ہی رہے گا؟ نہیں. اس سلسلے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے توہین کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. آپ کیسے لگا دیں گے؟ کون سے لوگوں نے توہین کی اور کس پہ جو ہے کفر کا فتویٰ لگا؟ ذرا اللہ کے نبی لگائیں گے فتویٰ یا رب حکم لگائے گا؟ نہیں، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، آپ میری بات تو سن لیجیے. میں قرآن کی آیت بتاؤں گا. لگا دیں گے آپ لگا دیں گے. آپ مجھ سے کیسے پوچھیں؟ ارے مفتی صاحب آپ تو مفتی صاحب ہیں. میں نے مفتی صاحب حضور کی شان کے خلاف سن لیجیے. ابھی آپ کے سوال کا جواب میں دے رہا ہوں. جو آپ نے یہ کہا کہ آپ کا کفر کا فتویٰ لگائیں، کس چیز کا فتویٰ لگائیں؟ جب آپ خود میں نے کہا سن لیجیے، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کفر کا فتویٰ لگائیں. میں نے یہ کب کہا کہ آپ کفر کا فتویٰ لگائیں؟ میں نے تو یہ کہا کہ آپ کے نبی کی شان میں، میرے نبی کی شان میں، یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کرے،
کوئی میرے آقا کی بے ادبی کرے، میرے آقا کے کمال کو گھٹائے، تو وہ بندہ مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ یہ فتویٰ لگائیے۔ اس کا فیصلہ تو اللہ، آپ نے خود کہہ دیا کہ اس کا اچھا، تو فیصلہ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں قرآن پاک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے جو ہے محبوب کے ذریعے سے، کلام پاک کے ذریعے سے صحابہ اکرام کو حکم دے رہا ہے کیا کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، قرآن کی آیت پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھیں، سنتا ہوں آپ قرآن کی آیت پڑھیں، پھر ترجمہ کریں، اور ترجمہ نہ کرنا نہ کریں، پھر قرآن کی آیت پڑھیں۔ تو قرآن کی آیت بھی پڑھنا ہوگی۔ اچھا، جیسے قرآن کی آیت کسی کو جیسے یاد نہیں، مثال کے طور پہ ایک منٹ وہ میرے ذہن میں ایک منٹ ذیشان بھائی، کیا وہ قرآن کی آیت یاد ہے آپ کو؟ کون سے پارے میں ہے؟ ایسے ایسے عقیدے والے ہیں کہ ارے اگر ایک منٹ اگر یہ قرآن پاک میں آیت نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صحابہ تم آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی میرے محبوب کو، میرے نبی کو نہ پکارو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تم کو معلوم بھی نہ ہو۔ اگر یہ میں نے قرآن سے آیت ثابت کر دی، ٹھیک ہے، تو آپ توبہ کریں گے؟ ثابت کیوں کر دی بھائی؟ ابھی جو سنیے یہاں پر ایک منٹ ساری چیزیں ایک بات آپ سنتے نہیں، دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بندے کی جب تک بات پوری نہ ہو جب تک دوسرا نہیں بولے گا۔ یہ خامخواہ کی بحث کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیات سن رہا ہوں، آپ کے اس سلسلے میں قرآن کی آیت پیش کریں یا حدیث پیش کریں، ترجمہ بعد میں کریے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں مان رہا ہوں یا نہیں مانوں گا، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ ارے تو ایک بھائی میں نے یہ کہا تھا آپ سے، ایک منٹ چلیے جو ترجمہ اگر میرے ذہن، ایک منٹ ترجمہ میرے ذہن میں ہے اور آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، مجھے قرآن کی آیت بتائیں، ترجمہ نہ بتائیں، میں ترجمہ نہیں جاتا۔ ایک منٹ اپنی ایک منٹ اپنی معلومات کے لیے میں کسی بندے کو لائن پہ لے سکتا ہوں وہ آیت پوچھنے کے لیے کہ کون سے بارے میں؟ پھر میں تو آیت پڑھ کے بتاؤں گا، ایک منٹ پڑھ کے میں ہی بتاؤں گا۔ سنیے بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، یہ مذہب اسلام سارے مسلمانوں کا ہے کہ میرا اکیلے کا ہے؟ میری بات سنیے، وہ آیت پوچھنے کے لیے آیت میں ہی پڑھ کے بتاؤں گا کہ کون سے سپارے میں ہے۔ بات سن لیجیے، آیت میں ہی پڑھ کے سناؤں گا، میں ہی پڑھوں گا، میں ہی اس کا ترجمہ کروں گا۔ میری بات آپ سن لیجیے، میں آپ سے دیکھو ذیشان بھائی یار، یہ قرآن کی بھائی کو بھی آپ الگ کر دیجیے، آپ مجھ سے، میں آپ سے بات کرنے کے لیے فون کیا، میری باتوں کا تم ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دے پا رہے ہو اللہ جی۔ غلط یہ بات نہیں کریں گے تو گزری کرنے کے لیے ہیں بات کریں۔ یہ تو دیکھو بھائی، بات نبی کی توہین کی چلی ہے تو یہ راہ فراری کر رہے ہیں، کنی کاٹ کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعد میں کریے گا، قرآن کی آیت سمجھے مسلمانوں؟ دیکھ لو، بات میرے نبی کی محبت اور توہین کی چل رہی ہے، اور یہ جب توہین پر آئے تو کنی کاٹنے لگے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ دیوبندوں نے توہین کی ہے۔ ہم حدیث سنتے ہیں، تمہارے دیوبند کے 11 قادروں نے توہین کی ہے، جس کا نام ہے مولوی اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد کمیٹوی۔ یہ ایک نمبر کے پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہیں۔ آپ پہلے آیت پیش کر رہے ہیں، جس جو معجزہ ہے، چھوٹا سا چھوٹا بچہ حافظ ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ارے یار تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ ایک منٹ، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم ہی ابھی ارے بھائی ذہن میں نہیں ہوتا؟ اچھا، حافظ قرآن ہوتا ہے، تراویح پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے، حافظ ذیشان صاحب بھولتا ہے کہ نہیں بھولتا ہے؟ یاد نہیں آتی ہے؟ ارے بھائی قرآن کی آیت کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے، نہیں ایسا اپنے بندوں سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب کے صحابہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ پکارو جس طرح کہ ایک دوسرے کو آپ آپس میں پکارتے ہو۔ میری بات سن لیجیے، آپ میری بات سنیے، اگر میں یہ کہہ دوں، آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی، اگر یہ میں کہہ دوں کہ پوری دنیا احمد رضا خان کو گالی دیتی ہے، احمد رضا خان جیسا زانی اور بدکار نہیں ہے، تو آپ تو بھڑک جائیں گے، تو ایسے نہیں، آپ دلیل پیش کیجیے، آپ قرآن مجید کی، تمہارے اگر اندر ہمت ہے تو اس کو ایک منٹ، ہاں ارے بھائی آیت پیش کریں آپ، انشاءاللہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی جانکاری کے لیے، تمہیں تو وہ آیت یاد بھی نہیں ہوگی، میں اپنی جانکاری کے لیے اپنے کسی ساتھی کو لائن پہ لے لوں، نہیں وہ آیت ایسا کیوں نہیں؟ کیوں اگر آپ نہیں جانتے ہیں، آپ آیت نہیں جانتے تو دیجیے، میں آیت نہیں جانتا۔ حافظ ذیشان صاحب، یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟
یہ دین میرا گھر کا تھوڑی ہے، میرے اکیلے کا تھوڑی ہے. بعد میں بات کریے گا، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں حضرت. جناب تمہاری میں نے آپ کو فون کیا، تمہاری صلاحیت پر تھوکیں گے لوگ، آپ ان سے ہاں میں ہاں نہ ملیں، مجھ سے آپ ہاں میں ہاں ملیں. تمہاری علمی صلاحیت پر لوگ تھوکیں گے. اچھا آپ جی بالکل، میں کیوں نہیں پوچھ سکتا یہ بتائیے. ایک منٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا. جس کسی بھی آسمانی کتاب پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ہمیشہ اس کا ضامن ہوں اور انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے ہی نازل کیا، ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی ذمہ دار. کسی اور آسمانی کتاب پر نہیں کہا. اس آسمانی کتاب پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کیا، اور آپ حبیب پر اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جو قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ نہیں، اور آپ کہتے ہیں بڑے محبتی میں ہوں. اچھا تمہارے جتنے بھی دیوبندی ہیں سب کو معلوم ہوتا ہے قرآن کے بارے میں. چلو یہاں جواب دو. دعویٰ کرتے ہیں نا کہ نہیں ایک منٹ، بات نہیں کر سکتا. الحمدللہ دعوت، الحمدللہ جو میرا کہنا ہے وہ اٹل ہے، مگر جو آیت میرے ذہن میں نہیں ہے. اٹل بعد میں کریے گا، اٹل بہاری تو گر گیا، جاننے میں ہو گیا. آپ جو ہے تمہاری کمزوری آج جھلک رہی ہے. تم نے کہا کہ نہیں کسی سے نہیں پوچھ سکتے، تو یہ کہاں کا اصول ہے کہ جو کر رہا ہوں حضور، ارے جناب آپ سے کر رہا ہوں، دوسرے سے نہیں کر رہا ہوں. تم توہین رسالت پر بھاگ رہے ہو، تم توہین رسالت پر بھاگ رہے ہو. اپنے آڈیو میں ہے یہی ہے اس کی راہ فراری. الحمدللہ تو میں کسی اور آیا تو پوچھ سکتا ہوں نا، آیا تو پوچھ سکتا ہوں نا جناب. نہیں آپ نے تو نہیں کیوں، کہاں کا اصول ہے یہ؟ نہیں بات ہو رہی ہے، آپ مجھ سے سوال کریں. یہ نہیں کہاں کا اصول ہے مجھے یہ بتائیے. یہی اصول ہے کہ آپ ترجمہ جانتے ہیں، آپ ترجمہ جانتے ہیں، آیت نہیں جانتے. اللہ کے نبی سے اتنی محبت، ارے بھائی سارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا اس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. اس کے آیت تو ترجمہ تو یاد رکھے ہیں. تو میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تمہارے سب عالموں کو ہر چیز کا علم رہتا ہے، ہر چیز جانتے ہیں. ارے ملا جی خاموش، ایسے لڑائی بات نہیں ہوتی، لڑائی ہوتی ہے، اس کو لڑائی بولتے ہیں لوگ. تم بھی بول رہا ہوں، میں بھی بول رہا ہوں. یہ کہاں کا اصول ہے مجھے یہ بتا دیجیے. ایک منٹ، کیا ضروری ہے کہ قرآن، اچھا یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں بڑے شیل پہ دو پیش کہاں پہ ہیں بتائیے، اگر تمہیں ہر چیز یاد رہتی ہے. نہیں پہلے بتائیے پورے قرآن میں بڑے شیل پہ دو پیش کہاں ہے؟ آپ نے بڑی شیل پہ دو پیش ہے کہاں؟ چلیے بتائیے. دلیل پیش کی ہے اس نہیں تم نے یہ کہا کہ تمہیں قرآن کا ہی علم نہیں ہے، تو مفتی صاحب آپ تو مفتی ہیں، چلیے بتائیے پورے قرآن میں بڑے شیل پہ دو پیش کہاں؟ میں فوراً چلیے بتائیے. آپ یہ کہہ دیجیے کہ اس آیت کے بارے میں نہیں ہے. میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سے پارے میں ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سے پارے میں ہے، یہ بول رہا تھا میں جناب. فون کاٹنے لگے گا آپ تو؟ آپ کی ارے فون نہیں کاٹا، فون کٹ گیا تھا ان کا، انہوں نے مجھے کال کیا ہے دوبارہ سے. ہاں کریں گے کہ آپ کو جواب دینے کے لیے بتا دیں، چلیے بتا دیجیے، بتا دیں. میں لائن پہ لے لوں، معلوم کر لوں اس آیت کے تعلق سے. ہم کیوں نہیں معلوم اجازت دیں گے؟ آپ نے چیلنج کیوں اجازت نہیں دیں گے؟ میرے رفقا کے ساتھ دیکھیے مسلمانوں. اچھا تو اب پھر ہم وہی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والا شخص مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ بتائیے. جو ٹاپک ابھی بالکل ابھی جواب دو. میں وہی تو گیا تھا، اور میں اپنے نبی کا ادب سکھا رہا تھا جو اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا. میں ادب سکھا رہا تھا. آپ سے پلٹیں گے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے اچھا وہ حضرت کو آیت کہاں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام چاہیے، وہ آیت کہاں پہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے میرے نبی کے صحابہ، کہ تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو. قرآن کے وہ کون سے بارے میں مجھے علم ہے پر ذہن سے اترا ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے بارے میں ہے، کس جگہ ہے؟ ارے جانکاری وہ ہے، علم وہ ہے کہ کبھی ذہن میں رہتی ہے اور کبھی نہیں رہتی، اور ایمان وہ ہے جو ہر وقت پایا جاتا ہے.
ईमान वो है जो हर वक्त पाया जाता है। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते तरावी में बंदा भूल जाता है और पीछे वाला बताता है पर उसको समझ नहीं आता कि ये बंदा बोल क्या रहा है। अच्छा समझे जनाब मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल से एक हाफिज कुरान की बात कर रहा हूँ जो कि उसे पूरा दिन रखता है। और ये जो आयत है, ये जो आयत है वो कौन से सिपारे में है, बस इतना जानना है मुझे। बाकी तो लल्ला मैं ही तुम्हारी हालत अभी पतली करूंगा, टेंशन क्यों करते हो। कह दें कि मैं नहीं जानता हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर तुम हक पर होते तो मुझसे कह देते, मुझसे कह देते कि हाँ जिसको दिल चाहो तो मुझसे पूछ लो। अगर तुम नहीं, तुम्हें मालूम है ना कि हाँ कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने बंदों से ऐसा फरमाया है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दूसरे को कह दें कि मुझे नहीं मालूम है, मैं क्या जवाब दूंगा, वो मेरे पास है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप मुझे मालूम, आपको मालूम हो गया कि मेरे दिल में क्या है? आपको मालूम हो गया क्या मेरे दिल में क्या है? तुम्हारे दिल में कुफ्र है। चलो अब बोला मैं इंशाअल्लाह, और मैं ये कुफ्र साबित करूंगा। मैं इस कुफ्र को तुम्हारे साबित करूंगा। आलिमुल गैब कब हो गए? मैं इस कुफ्र को साबित करूंगा जो मैंने बोला इंशाअल्लाह। पहले ये आयत साबित कर दो, उसके बाद इंशाअल्लाह वो जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। आयत साबित कर दो, पूरी रात गुजर जाएगी। आयत साबित कर दो, पहले आयत साबित करो, फिर अरे तुम्हारे वो आयत अगर मेरे रहते नहीं है तो मैं दूसरे से पूछ क्यों नहीं सकता? इसका जवाब दे दो मुझे। अहमद अली रजा खां बरेली भी वो बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, वरना नंगा कर दूंगा, चड्डी बनियान सारा उतार दूंगा। क्या? बदतमीजी करने की कोशिश मत करना, वरना चड्डी बनियान सारा उतार दूंगा। आप मत करना, याद रखना। तुमने कई बार गलत दिया है, तुमने कई बार गलत बोला, मगर मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपसे साबित नहीं कर सकता। सोच रहा हूँ कि आपसे प्यार मोहब्बत से बात हो जाए। प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ, कुफ्र साबित करने के लिए तुम्हारे पास जबान हो गई, तुम अपने रहमत बिल्कुल और मेरा कुफ्र साबित करो। इंशाअल्लाह मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह। तुम क्या पहले कुरान को ये बताइए किसी काफिर के कुफ्र में शक करना कैसा है? नबी जिसको मोहब्बत बड़ा साबित करते हो, मैं बड़ा मोहब्बती हूँ। ये बताइए किसी काफिर के कुफ्र में शक करना कैसा है? मुफ्ती हमसे आप आयत पेश कर दो, आप ये कह रहे हैं मुझे आयत मालूम नहीं है। ये मुफ्ती अमजद कासमी देवबंदी है, देवबंद का रहने वाला है। आप कौन है? अच्छा हजरत वो आयत मेरे जहन में नहीं आ रही है कि कौन से सिपारे में है, मैंने पढ़ी है यार, मगर मैं भूल रहा हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रही। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे की तरह हुजूर को मत पुकारो, कहीं तुम्हारे अमल जाया ना हो जाए, और है भी वो शुरू के पारों में। हाँ ये कोई बात नहीं, तो ये मुनकिर है इस बात के 3 हो गए नहीं है। चलिए 3 हो गए। ये पता नहीं मुनकिर है या काफिर है या कौन है या क्या है, अल्लाह बेहतर जाने, पर वो मेरे जहन में आयत नहीं आ रही हजरत। अरे 3 हो गए 3। और ये कह रहे हैं कि नहीं पूछोगे भी किसी से नहीं, तो ये कहाँ का उसूल है भाई, पूछोगे किसी ने? 3 मेरे घर का थोड़ी है भाई, मेरे उलमा से मैंने सीखा है। एक कासमी बात कर रहा है, 3 का भी, चौथा भी आ जाएगा, 5वां भी आएगा, आने से इनसे बात किस मौजूद हो रही है? बात ये हो रही थी कि इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा ये कहना है कि कोई भी देवबंदी मुझसे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा चलो सुबह में बात करो, तो बोले नहीं अभी बात करो, तो इन्होंने अभी बात करने के लिए मजबूर किया। तो मैंने कहा ठीक है इंशाअल्लाह, अभी बात करना चाहते हो तो ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से अब सो जाओ, वरना नींदें उड़ जाएंगी। अभी मैं अकेले 3 की उड़ा रहा हूँ। अरे यार ये बकवास करने से क्या होता है? क्यों ठीक है मार रहे हो? खबर आएगी, मुंह बंद रखो। 3 को देखो नींद उड़ा रहा हूँ। ये ठीक है मार रहे हो, बंदे काम है, मुझसे बात करोगे? अरे मुझसे बात करोगे? अरे रहने तो दो यार हजरत, अभी यार वो आयत बताओ ना, बस खाली वो आयत कर दो, आयत मिल जाए वो। पोस्ट की तलाश कर लीजिए, करिए तलाश। तुम्हें फायदा कितने मिनट हो गए भाई? देख लो मिनट, देख लो क्या करने में। ये कौन सी शर्त है कुरान के अंदर? कुरान ये तो दरिया है, कुरान तो कुरान है ना, दरिया है। अब जहन में ये नहीं है कि कौन से पारे में है। कहता आप तर्जुमा पेश करते हैं, आप बड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तो तुम्हारा पागलपन है, इसको भी लोग देखेंगे हंसेंगे। और तुम्हारा नंबर पेश कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर बता चुका हूँ मैं लोगों को, उलमा को बता चुका हूँ। हमारे सामने कहते हैं तो गैरों के सामने क्या करते होंगे?
मेरा इतना सा सवाल है, जब आप हमें इतना कह रहे हैं तो गैरों के साथ क्या करते होंगे। अब उसी पे मैंने ये सवाल किया, अगर मैं ये कह दूं ये तो शर्त हमारी बेहुदा शर्त है, ये शर्त तो बेहुदा शर्त है। तुमको डर लग रहा है कि ये अगर, अच्छा तुम ही बता दो कि वो तुम इस आयत को पढ़ते हो क्या, ये तुम्हें ये तर्जुमा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, आंखें बंद कर लेते हो कि यहाँ पे अल्लाह ने हमें जो है अदब सिखाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का। जवाब दें, आप ये कह दो कि मैं ये आयत नहीं जानता हूँ। अरे भाई मेरे जहन में नहीं जानता, क्यों जानता हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें इस आयत के ताल्लुक से बताया। अरे कितना बड़ा पागल आदमी है आप, जो है दलील कैसे पेश करते हैं किसी चीज की, कितना बड़ा पागल आदमी है। अगर मैं नहीं जानता तो फिर तुम्हारे सामने बोलता क्यों, मेरे जहन में नहीं है, फिर मेरे जहन से उतरी हुई है। अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, और तुम्हारी जमात और अभी गिरवाऊंगा, तुम्हारी जमात के ही लोग इंशाअल्लाह तुम्हारी हवा खराब करेंगे। जमात को छोड़ दो, देखो अकेला हूँ, 3 है लाइन पे, जमात को मैं बात कर रहा हूँ ना अकेला भाई। 3 भाई तुम चुप जाओ जरा, मुझसे बात करा दो इसे। हुजूर आयत इलाही, हुजूर का इनकार, रब का इनकार, हुजूर। अरे यार वो आयत मुझे नहीं मिल रही, मेरे समझ में नहीं आ रही वो आयत, मुझे बताओ यार, अभी मैं इसकी बखियां दौड़ता हूँ यार हजरत। छोड़ो, तो ये मुनकिर है इस बात के कि नहीं है, ये शायद ये मुनकिर है, हाँ इसीलिए तो इनकार कर रहे हैं। हाँ किसने कहा इनकार करने के लिए, किसने इनकार किया, और इनकार किसने किया? अरे तो फिर तुम इस आयत को क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? मैंने आपसे कहा आयत पेश करें, मैंने आपसे कहा था सवाल करूं, तो आपने क्या कहा था, आपको सवाल करने का हक नहीं है, सिर्फ जवाब देने का। तो आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूँ, कोई और नहीं काम कर। अरे जनाब तुम बड़बड़ करने आए थे ना जनाब। अरे ये तो बड़बड़ करने नहीं आया, अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ अच्छे हाफिज भूल जाते हैं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक सादा आदमी हूँ, बस मेरे जहन से ये उतरा हुआ है, मैंने कौन से सिपारे में पढ़ा है ये उतरा हुआ है, और कौन से रुकू में है। अल्लाह के बंदे, तर्जुमा आपको याद है, आयत नहीं याद है, और आप तर्जुमा। अरे यार कोई जरूरी है, किसी का तर्जुमा याद रह जाता है और किसी कोई आयत याद रह जाती है, ऐसा भी तो होता है, किसी का तर्जुमा याद नहीं आता है, ऐसा भी तो होता है। यही तो आपका मैं पागलपन कहूँ, जुनूनपन कहूँ, कौनपन कहूँ। खैर इसका फैसला तो जो सुनेंगे वो करेंगे जी, इसका फैसला जो सुनेंगे वो लोग करेंगे। हाँ कौन करेंगे? हाँ अपने आप में बहुत बड़े होशियार समझ रहे हो ना कि आपसे तुम्हारी कम अकली का सबूत यही है कि नहीं दूसरे से नहीं पूछोगे, तो मैं किताब से ही देख रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे कहीं से वो चीज मिल जाए। लफ्ज़ मुझ क्यों इस्तेमाल किया? ये कहते कि हमारी जमात से कोई जवाब नहीं, कोई पंगा नहीं ले सकता। अरे इस्तेमाल किया, फिर वही बात इस्तेमाल करते जब तुम्हारे पास इतना जो है नहीं दे रखा है, जब अरे बेवकूफ इंसान, तो कुरान है ना एक हाथ दिन में मुझे कई बार रखता है, दिन में कई बार रखता है और आयत ही भूल जाता है वो, मैं अब पीछे से बताता है, फिर भी ध्यान में नहीं आती, तो मैंने तुझे रसूलुल्लाह के अदब का मकाम बता रहा था हुजूर को कि किस तरह सहाबा इकराम ने पुकारा, अल्लाह ताला ने किस तरह पुकारने का हुक्म किया। आप जो है अकीदे वाले हैं, आप बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, आप आयत अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुसलमान को पढ़ा रसूल, तुम बेअंदियों के काफिर पक्के काफिर, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है और इस दावे को साबित करता हूँ और करता रहूंगा। आके कब्र से निकल के भी मुझको जो है काफी नहीं साबित कर सकते, समझा? तुम्हारे अहमद रजा खान जो पहुंचे हुए हैं, समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हो, सब समझ में आ रहा हो क्या? वो भी तुम्हारे तो जितने होंगे वो तो छोड़ दो, जो तुम्हारे जो पेशवा है अहमद रजा खान को साबित नहीं कर सकते तुम्हारे अंदर। ये बताइए कि किसी काफिर के कुफ्र में शक करना कैसा है? अगर कोई बंदा काफिर है, ठीक है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करके काफिर हो गया, ठीक है, फिर भी जो है लोग उसको मुसलमान माने, तो मुसलमान मानने वाला इंसान मुसलमान ही रहेगा। जो आपका जवाब है वो मेरा जवाब है, क्यों? इसलिए अभी आपने मेरे बारे में कुफ्र का फतवा, कुफ्र के बारे में कहा है, आप बता दो। बोलिए तो बोलिए, मैं साबित करूंगा इस बात को, मैं साबित करूंगा इस बात को। तुमने खुद कहा कि तुम देवबंदी में जानबूझकर हो,
मैं ने तो तुमसे ये कहा था कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि देवबंदियों में आप अनजाने में है, धोखे में है। मैंने तो पहले ही कहा, मगर आपने खुलासा पहले ही कर दिया कि नहीं मैं जानबूझकर देवबंदियों के साथ हूँ। मैं होश हवास और हर तरीके से जानबूझकर जो अल्फाज कहना चाहे हर तरीके से मैं देवबंदी में हूँ और जानबूझकर हैं आप। तक मेरी जिंदगी खत्म होगी उस वक्त तक मैं रहूंगा, मेरा खात्मा भी इसी पर होगा। आमीन आमीन, तुम्हारा खात्मा इसी पर हो जाए। मोहम्मद रजा खां बरेलवी के उस पर नहीं मरूंगा, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। के उस पर मरूंगा। देखो बदतमीजी मत करो मुफ्ती साहब, वरना जब मैं अभी आपने कुफ्र का फतवा लगा, कुफ्र के बारे में कह दिया तो अरे मुझे तो मैंने तो मैं साबित करूंगा। आपने मुझे काफिर कह दिया, कुछ नहीं हुआ, और मैंने आपको कह दिया तो मैं साबित करूंगा। आप मुझसे ये करिए ना, निकल जाएगा। फिर वही बात, आपने मुझे काफिर बना दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। और तो मैंने बना क्या दिया, तुम हो बाहर निकलने लगा, बना क्या दिया है? अरे पहचान नहीं कराई जाएगी क्या? पहचान तो बाद में, पहले तो मैं देख रहा हूँ ना, अभी तो मैंने कहा तो आपको सब पिछवाड़े सब निकलने लगा। बताएंगे कब साबित करेंगे, वो तो बाद में देखूंगा। ये बस इतना मैं देख रहा हूँ, अभी बात में आपने मुझसे कहा तो मैं तो खामोशी सुन लिया। तो मैं भी तो मेरे बुजुर्गों को ऐसा निकलने लगता है कि सब कुछ बाहर निकल जाएगा। जनाब यार वो आयत मेरे जहन में नहीं आ रही हजरत, वो शुरू के पारों में है किसी जगह, नहीं आएगी। रुको जरा एक मिनट, मुझे पूछना होगा। और अभी तुम्हारी आने की नहीं, हालत नहीं, भागना मत कॉल काट के जनाब। मैं काट, तुम कुरान भी उठाओ और सब कुछ देखो, मैं भागने वाला इंसान नहीं हूँ। एक हाँ उठाओ कुरान, फिर बताता हूँ तुम्हें। एक साथी को लाइन पे लेता हूँ। मुझे जाना नहीं। या मुस्तफा अता हो। हेलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हजरत। अस्सलाम, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है हजरत। इमरजेंसी इसलिए मैंने कॉल किया आपको। अच्छा बताइए क्या बात है। वो कुरान पाक के कौन से पारे में है, कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब की बारगाह का अदब सिखाया कि ए मेरे महबूब के सहाबा, तुम हुजूर को ऐसे न पुकारो जैसे कि आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अच्छा जी, कुरान मुक़द्दस में एक आयत है आपके पहले पारे में है कि काफिरे जो है वो कहा करते थे, राइना कह करके पुकारा करते थे। जी 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 हाँ। कुफार, मैंने इस ताल्लुक से मैंने किसी ग्रुप में मैंने बताया था, वहाँ भी इनकार करते पहले पारे में है ये वक़ूल उन्जुरना, फिर उन्जुरना कहने के ये कहा गया, राइना कह के पुकारा करते थे साहबा। ये साहबा कराम भी कहते थे पहले, काफिर मुश्रिक भी कहते थे। उस बंदे को लाइन पे लेता हूँ हजरत, लाइन पे। तो पहले पारे का कौन सी जगह है ये? चलो एक आदमी तैयार हो गया बोलना। चलो कम से कम मुझे जीत हो। अरे यार बकबक तो कम कर यार। मैं मुझे जीत हो गया, डबल हो गए। कौन है? तो मैं तैयार था, दूसरा आ गया। ये देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, तो मैं इनका अपने साथी को लाइन पर लिए लेता हूँ। छोटा सा आदमी हूँ। देवबंद के मुफ्ती अमजद कासमी देवबंदी है। अच्छा, वो कौन से पारे की आयत बता रहे थे? पहले पारे में कौन सा रुकू है, कौन सा आयत मालूम है हजरत? ये मैं देखना होगा, मैं देख करके बता देता हूँ। चलिए 3 हो गए, चलिए ठीक है, देख के बता लें। चौथे को ले लें, शरीक कर लें। अरे चुप ही है ना यार, इतना बोलते बढ़ते जाते हैं और शरीक कर लें। रुके, इनका एतराज किया, अपना एतराज पेश करे आप। ये मेरी बात हो रही थी इस बात पर कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कितनी मोहब्बत करते हैं। इन्होंने कहा कि मैं जो है उलमाए देवबंद से ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। हालांकि जो मोहब्बत का पैगाम था वो बताया ही नहीं कि मैं अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ या अपने बाप से, ये सब चीजें ज्यादा मोहब्बत करते हैं बस खाली। हाँ, उलमाए देवबंद से ज्यादा। तो मैंने कहा ये बताइए कि रसूल पाक इस्माइल गंगोही जिनके ऊपर उलमाए अरबो अजम ने कुफ्र का फतवा लगाया है, जिन्हें काफिर कहा है, और वो बात उठाइएगा, पहले ये बात पूरी कर लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए हजरत। हाँ, तो मैंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जरा बराबर तौहीन करने वाला इंसान मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा। तो इन्होंने बात को घुमा दिया, बताया ही नहीं कि वो मुसलमान रहेगा या काफिर होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि रसूलुल्लाह की शान में बहुत लोगों ने तौहीन की, हुजूर ने कोई फतवा ही नहीं लगाया।
पीछे जाके देख लीजिए, पीछे जाके लौटा के देख लीजिए कि आप मैंने कहा है कि नहीं कहा है, क्या कहा है? दे दिया है। आप यही बहुत बड़े जवाब ही नहीं दिया जनाब। आप क्यों बात को घुमा रहे हो यार? आप जाके पीछे हजरत पहले वो चीज बताइए मुझे, रायना कौन सी जगह है, जरा मेरे जहन से उतरा हुआ है हजरत। हाँ उतरेगा, एक मिनट में बता रहा हूँ, एक मिनट। जी जी जी। हाँ, कुरान मुकद्दस की क्या है, कौन से पारे हैं, कौन से रुकू है, और उसमें हाँ। क्या कहा गया है उसके ताल्लुक से, और उलमाए देवबंद का क्या फतवा है, और उलमाए सुन्नी जो है बरेलवी ने क्या फतवा दिया है, किसने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया है, क्या है, तमाम डिटेल में इस ताल्लुक से मैंने किसी क्या नाम है उसका, असगर देवबंदी से जब बहस हो रही थी उसी के ग्रुप में, तो उसे मैंने दिया था। तो वो आज तक वो तो मर जाएगा लेकिन कभी तक जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सब मेरे पास है। हाँ, ये सब मेरे पास है हवाले, पर अब इस जहन में नहीं आ रहा कि कौन से रुकू में है और कौन से पारे में है। सूरह बकरा आयत नंबर 103 या 103। अच्छा, सूरह बकरा आयत नंबर 103। हाँ हाँ 103 है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन। आयत नंबर 103। हाँ यार ये है, तो फिर निशान भी लगा हुआ है। ये कौन सी जगह है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। अच्छा एक मिनट, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला। हाँ सुनो भाई, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफिरीन अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन। किसी का ये करें जनाब सुनिए, ए ईमान वालों, राइना ना कहो और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें जी। और पहले ही दुनिया का खामोश रहिए, इस आयत का नुज़ूल बता दें। अरे यार सारी ओफो यार, तुमने कहा कि ये बताओ ये कहाँ है, तो मैंने जब ये बता दिया तो आप जी मुफ्ती साहब, मैंने आपसे पूछा था, मुफ्ती साहब मैंने आपसे पूछा था, ज्यादा बड़बड़ मत करो, मैंने आपसे पूछा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला शख्स मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? तो आपने कहा था मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। अगर आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो ये रसूलुल्लाह से अगर मोहब्बत करते हैं तो बताइए आपके नबी की शान में तौहीन करने वाला शख्स मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? आपने इस आयत को किस दलील पर पेश किया? फिर वही बात नहीं, मेरे आका का अदब। मैं आपकी बात दोहरा रहा हूँ। एक मिनट नूर हसन भाई, एक मिनट। अच्छा मैं आपसे मुखातब हूँ, ये मुझे बताइए कि अल्लाह के आप नबी मुझसे कल बात कर लीजिएगा। सुनिए, आप मुझसे कल आप इनके मुसाई बन जाइए, मददगार बन जाइए। नहीं एक मिनट, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। आप पहले यूट्यूब पर जाके चैलेंज कीजिए, जो दूसरे हजरत है उनसे मैं कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाके चैलेंज कीजिए कि मुझसे कोई भी देवबंदी बात नहीं कर सकता। तो ये लड़ने लगे हैं, अब ये लड़ने लगे हैं, नंबर डाल दीजिएगा। ऐसे बात थोड़ी होती है यार। एक मिनट तो लड़ाई करते हैं। नहीं, नूर हसन जो है सुन लीजिए कुछ कह रहा है, नूर हसन फेल हो गए, वो नहीं जवाब नहीं बात करेंगे। फेल हो गए, अगर फेल हो गया मैं फेल हो गया, फिर मैं आपसे बात करूंगा। एक मिनट, मुझसे बात करने का जरूरत नहीं है, मुझसे अभी बात मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे बात करो, ठीक है, बस एक लफ्ज का जवाब दे। एक लफ्ज मैं आपके एक लफ्ज को नहीं सुनूंगा। आप मैं जिससे बात कर रहा हूँ उससे बात करूंगा। अगर नूर हसन ये कह दे कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मैं फेल हो गया, तो मैं आपसे बात करना तैयार हूँ। आप नूर हसन कह दें कि मैं फेल हो गया, अब मेरे साथी से बात कर लीजिए, मैं तैयार। तुम्हारी हालत अभी से पतली हो गई है। खैर मुफ्ती साहब, तभी दूसरे आ गए। नहीं देखिए, मैंने कहा था ना कि मेरे जहन में आया नहीं, मैंने पढ़ाया शुरू के बारे में है। ये क्यों नहीं कह देते? जनाब मैंने ताहिर भाई आप लाइन पर है ना? मैंने कहा था ना कि शुरू के पारों में है, पर मेरे जहन से उतर गया है कि मैंने कहाँ पढ़ा है। अरे कहा था ना, ये तो मुफ्ती हो गया यार, ऐसी बात कर रहे हैं। तो इन्हें भी मालूम है कि कुरान तो एक जरिया है, इसमें आदमी भूल जाता है। कौन कह रहा है कि नहीं है? कौन कह रहा है कि नहीं है? तो दी, अरे अगर जहन में नहीं थी आदमी से पूछ रहा हूँ, इसका शान नुज़ूल बता दें, इसका शान नुज़ूल बता दीजिए आप।
तभी तो मालूम होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब मोहब्बत करते ठीक है, इसका शान नज़ुल बताता हूँ। आयत नंबर चीजें नाजिल होती थी, 103 हर चीज का आपको इल्म है। आयत नंबर किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी हर अदा अच्छी लगती है, किसी से जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है उसकी हर अदा उतनी अच्छी लगती है। अच्छा, तो मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सुनिए मुफ्ती साहब, मैं रसूल पाक की मोहब्बत में ही तो ये कह रहा था कि आप अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं और आपके नबी की शान में कोई तौहीन करता है तो वो शख्स मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा। तो आप इतनी लंबी चौड़ी इधर उधर को भगा रहे हैं, आप सीधा नहीं बताते कि नबी की शान में तौहीन करने वाला काफिर है। बोलते क्यों नहीं हो कि नबी की शान में तौहीन करने वाला काफिर है? बोलते क्यों नहीं हो कि नबी की शान में तौहीन करने वाला काफिर है? मुसलमानों फैसला करो, यह है तुम्हारे नबी का दुश्मन, दावा करता है कि मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, देवबंदू से ज्यादा नबी से मोहब्बत करता हूँ, यह है तुम्हारे नबी का दुश्मन। मैंने नबी की मोहब्बत और नबी की दुश्मनी की बात कही थी कि जो नबी की शान में तौहीन करे, जो नबी से दुश्मनी रखे, वो मुसलमान है या काफिर? तो ये कहता है कि रसूलुल्लाह ने काफिर नहीं कहा। आपने आयत किस बारे में पेश की है? इसीलिए कहा था कि मेरे रब ने मेरे नबी की बारगाह का अदब क्या सिखाया सहाबा इकराम को। तो ये आयत सहाबा इकराम के उसमें नाजिल हुई या किसी, इसका शानुज़ी से तो पूछ रहा हूँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आयत नाजिल हुई है ये। अरे सुनो, हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ मुनाफिकीन काफिर ऐसे थे कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माअल्लाह राहीना कहकर पुकारा करते थे वो शैतान। यानी ये हमारे चरवाहे माअल्लाह। राहीना का मतलब हो गया चुप चुपिए चुपिए चुपिए, खामोश रहिए। और राहीना या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह हमारी रियायत फरमाइए, हमें समझा दीजिए, इसका ये मतलब हुआ। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने राहीना कहने वालों को भी मना फरमा दिया कि ए मेरे महबूब के साहबा, वाकई अगर तुम सही बोलते हो, तुम अच्छा बोलते हो, तुम्हारे कहने में कोई खराबी नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं है, मगर तुम्हारी इस बात को पकड़कर ये दुश्मन है, ये गलत बोलते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को ये भी पसंद नहीं है कि किसी अच्छे लफ्ज के माना गलत तरीके से बयान किए जाए। ये भी मेरे रब को बर्दाश्त नहीं है यार। जी मुल्ला जी, आए क्या हो तुम पढ़ के? तुमसे कहा था ना कि नींदें उड़ जाएंगी, तुम्हारी नींदें उड़ा दूंगा। पक्के सच्चे सुन लीजिए, अकीदे में पक्के सच्चे नाम बता दीजिए, उस मुनाफिक का नाम क्या है? अरे यार, अब देखो कितना लंबा चौड़ा, अगर मुझे ना मालूम हो, अरे अगर मुझे अल्लाह के नबी, ये कहाँ की शर्त है? और अल्लाह के नबी, मैंने एक मिनट मैंने सीधा पूछा था अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले मुफ्ती साहब पता नहीं है तुम्हारी जहालत में कौन हंसेगी मुफ्ती साहब? बहुत हंसेगी इनकी जहालत पर, लोग बहुत हंसेंगे। कौन बहुत हंसेगी कि तीन आदमी एक जाहिल को उससे बात कर रहे थे, जाहिल से, और उनको इतना नहीं पता। जाहिल से? अरे तुम तो मुफ्ती बता रहे हो जनाब, जाहिल नहीं हो तुम। वस्माउ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। और आयत कहाँ पेश कर रहे हैं कि कहा अल्लाह के नबी को अगर कोई कुछ भी तकलीफ हो, उसके बारे में कुछ अगर अल्लाह के नबी को कुछ कह दे, तकलीफ हो, तो उसको काफिर है या क्या है? उसके सिलसिले में आयत पेश कर रहा। मैंने ये बात इसलिए पेश की कि मेरे नबी का अदब क्या सिखाया अल्लाह ताला ने। नहीं, आपने आयत की जो पेश की है ये अदब के सिलसिले में पेश की है या? तुमसे मैंने पूछा था कि रसूलुल्लाह के सामने तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर है? जी, तुमसे मैंने पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जरा बराबर तौहीन करने वाला शख्स मुसलमान है या काफिर है? तो इस आयत यही पूछा था ना कि अगर इस आयत, अरे मेरे नबी का अदब मेरा रब सिखा रहा है, अदब सिखाया जा रहा ना यहाँ। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि जो बेअदबी करे मेरे नबी की शान में, वो मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? और एक और आयत है हज़रत, एक मिनट, एक और साबित हो रहा है क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी की शान में क्या कहते हैं कि बेअदबी करने वाला, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी की शान में बेअदबी करने वाला वो काफिर है। इस आयत साबित हो रहा है क्या? अरे यार, वो भी साबित करूंगा, अभी वो भी साबित करूंगा। एक मिनट हज़रत, मुफ्ती अमजद कासमी साहब, आयत को आप साबित करें। मुफ्ती अमजद कासमी साहब, एक मिनट मुफ्ती अमजद साहब, तुम तो एक मिनट। अच्छा, एक और आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने, पहले को आप साबित करें कि कुफ्र के बारे में आपने ये कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है या नहीं, और उस पर आपने ये दलील, ये आयत पेश की है दलील में। इस आयत को साबित करें। मैंने इसलिए ये आयत पेश की है कि मेरे नबी की बारगाह का क्या अदब है।
नहीं आप फिर मोमिनों को भी रोक दिया गया। अरे जनाब मोमिन, अरे यार तुम्हारी जिहालत पर लोग हंसेंगे कि किसने मुफ्ती बनाया है तुम्हें यार, तुम्हारे मुफ्ती का नाम क्या है जिसने बनाया? बेटा तुम्हें ऐसा हंसेंगे कि कहेंगे कि हमने तो ये समझा था कि बरेली का बहुत बड़ा पेशवा है यहाँ पर। अरे मैं आम आदमी हूँ मुफ्ती साहब मैं आम आदमी हूँ। अमजद देवबंदी जो है ये चाह रहा है कि जो मुसलमान है वो ये कहना चाह रहा है। हाँ, जो गुस्ताख रसूल है वो भी मुसलमान है, इनका कहना तो यही है। क्या कहना चाह रहा है? गुस्ताख रसूल को मुसलमान मानते हो ना? करना चाह रहे हो कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है वो मुसलमान है, वो काफिर नहीं हो सकता, ये साबित करना चाह रहे हो। अच्छा, आप आलिमुल गैब कब से हो गए? अरे ये पूछ तो तुम्हारे मेरे कहने पे मैंने कहा ये कह दिया, मैंने कहा ये कह दिया, बातों से पता चल जाता है ना। हर मुसलमान मेरे लफ्ज़ को साबित कर दो। मैंने कहा कह दिया में जो मैंने ये कहा कह दिया, दो आदमी को पटकराऊं एक बेटा। तुम्हारी जिहालत का अंदाजा तुम्हारे मुफ्ती लोग लगा लेंगे। एक और को बुला लो, दो को पटकराऊं एक साथ। जो आयत आपने पेश की थी, आयत यहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक से बात चल रही थी और अदावत के ताल्लुक से बात चल रही थी। बेटे सुनो, रहने दो मुफ्ती साहब, रहने दो। हजरत मेरे बेटे सुन लो भाई, खामोशी से। इससे प्यार से बात करूंगा, प्यार से मारूंगा इसको। हजरत मुफ्ती साहब देखो अब ये बदतमीजी का आ गया। पहले खूब अच्छा भाई आप मत बोलो, मैं ही इसको लताऊंगा। और एक और वो बताओ जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा से फरमाया कि तुम एक दूसरे की तरह आपस में रसूलुल्लाह को ना पुकारो, कहीं तुम्हारे अमान जाया ना हो जाए, तुमको इल्म भी ना हो, मालूम ना हो। वो कौन सी जगह है, वो भी सुनाओ। तुमने तो तर्जुमा ये किया था, तुमने तो हाँ सुनो तो सुनो। अरे पेश करो ये। अरे तो क्या हो गया, वो भी देंगे, वो भी कुरान ही है, वो भी कुरान ही। अरे वो भी कुरान ही है। अरे मुफ्ती साहब वो भी कुरान है। अरे ये कैसे पागल आदमी, वो भी कुरान नहीं है, वो भी देंगे। दो टेंशन मत लो। अभी तो दूसरा बात सुनो। अरे एक मिनट बात सुनो, सुनाओ, तुम कल सुनाना, ठीक है? अरे बेवकूफ मुफ्ती साहब तो मुफ्तखोर मुफ्ती हो, ये तो कोई कबूल नहीं कर सकता मेरा चैलेंज। मुझसे बात अल्लाह ताला नबी के मतलब एक नाम रायना कहने पर भी मुतनब्बा कर रहा है सहाबा किराम से कि तुम रायना ना बोलो। मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं तुमसे बात ही नहीं करता। वो तो मैं समझा चुका हूँ, मैं तुमसे नहीं बात करता। लोग जाहिल हो ना तुम बच्चे। पहले यूट्यूब में डालो, पहले मुझसे कोई मुकाबला नंबर के साथ और फोटो भी दे दो अपना। कितने बड़े जाहिल आदमी हो, फोटो भी दे दो अपना। से जमीन पर ऐसी टपक कर तुम आए थे क्या? पहले दुनिया में परचम के लिए तुम झंडे गाड़े थे क्या? माँ के पेट से निकलने से पहले जो यूट्यूब में डालने के लिए तुम ये फेमस होना चाहता है, ये फेमस होना चाहता है। उतुल्लिम बाद जाली का जनीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्ताख होगा वो हरामी होगा। बेशक तुम गुस्ताख नहीं हो, आया तर्जुमा, तुम गुस्ताख नहीं हो, तर्जुमा कुछ कह रहे हो और कुरान की आयत कुछ पेश कर रहे हो, तुम गुस्ताख नहीं हो। ये कुरान की पाक की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उतुल्लिम बाद जाली का जनीम, कुरान पाक की आयत है। पेश करने वाला क्या है? हर सुनी सुनाई बात को पेश करने वाला क्या है? झूठा है। क्या थी बोला? तुम झूठे से मैं बात करता हूँ। अरे कुरान है ये जो पढ़ आया। आयत क्या तर्जुमा किया तुमने? तर्जुमा क्या किया था और आयत क्या पेश की? अरे उतुल्लिम बाद जाली का जनीम, हुजूर की शान में तौहीद करने वाला, बिल्कुल हुजूर की शान में बेअदबी करने वाला हरामी है। कुरान ने बोला हरामी है। अरे पहले तुमने तर्जुमा क्या किया तो वो बता, उसके बाद तुम्हें आयत पहले। अरे पागल वो भी दूंगा, टेंशन क्यों लेता, वो भी कुरान से दूंगा। तू काय का मुफ्ती है? आप लगे नहीं है। तुमने कहा था कि तू हाफिज भी है, तू हाफिज है वाकई? तफसीर पढ़ो, तफसीर। तू वाकई हाफिज है? मैं तो जाहिल आदमी हूँ। अरे तूने तो मुफ्ती बताया ना। अरे अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर। देखो मुसलमानों देवन के मुफ्ती जब फंस जाते हैं तो कहते हैं जाहिल है। मुफ्ती का तर्जुमा बता दो, मुफ्ती के माने क्या है? जाहिल है, जाहिल नहीं, तुम जानकार हो, तुम आलिम हो, मुफ्ती का माना बता दो। तो तुझे बताने से फायदा। ताई भाई रुको, हामिद मुझसे जो है पंगा नहीं ले सकता। अरे एक जाहिल से पंगा जाहिल करेंगे बात। कहा है, तुमने तो साफ कहा है कोई भी मुझसे पंगा नहीं ले सकता। एक जाहिल से नहीं निपट पा रहे हो तो आलिम को कैसे निपटोगे? मुफ्ती बताना मुफ्तखोर,
ये इसी तरह के मुफ्त खोल लो। ईमान के मुफ्ती तीन जाहिल हूँ। तुम अगर समझ गया होता की हालत खराब है। जाहिल है। हाँ, इसीलिए कुरान को नहीं समझ पा रहा है, ये जाहिल है, और ज्यादातर जाहिल ही देवबंदी में जाते हैं। पूरे कायनात के लोग भी तुमको समझाएगा, हम लेकिन तुमसे अच्छा अकीदा रखते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। तर्जुमा कुछ करते हैं और आयत कुछ पेश करते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल। अच्छा अकीदा रखते हो। देखो मुसलमानों, देवबंदियत की हकीकत यही खुल गई है। हाँ, क्या खुल गई है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुस्ताख होगा उसे मुसलमान मानता है ये। अच्छा, जी। किसने कह दिया? किसने कह दिया? तुम्हारी बातों से तुम जब उसे काफिर नहीं कह रहे हो तो तुम काफिर को कहने के लिए तैयार नहीं हो रहे तो मुसलमान नहीं। तुम अभी तो मैं समझता था कि आलिमुल गैब, अभी तो मैं समझता था कि आलिमुल गैब अल्लाह है। अब ये समझने लगा कि जितने बरेली हैं सब आलिमुल गैब हो गए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। सब बरेली आलिमुल गैब हो गए। सुनो अशरफ अली थानवी जब पैदा हुआ, ये लड़ाई करेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। ये अपने आप को मुफ्ती बता रहा था। ये बेवकूफ है, वो समझेगा नहीं, समझे, उसका मुंह मत पड़े, वो समझेगा नहीं, वो जाहिल है एक नंबर से। हाँ, नहीं, बहुत जो है फॉर्म में आया था, मैंने कहा जा मत बात कर। हाँ, अब मैं इसको कॉल लगाता हूँ हजरत, मैं इसको करता हूँ। वो बेवकूफ है, समझेगा नहीं, वो खाली चिल्लाएगा। ये लोग की आदत है खाली चिल्लाना। जी जी जी, समझे। चलिए मैं लेता हूँ इसको। हाँ, ठीक है। देर के लिए। अरे जनाब, क्या हुआ, क्यों कॉल काट दिया भाई? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ अब फिर दूसरे तीसरा फोन काट दिया। अभी तो मैं समझता था पूरी रात रहेंगे। नहीं, क्यों कॉल काट के भाग रहे हो? क्यों कॉल काट के भाग रहे हो? तो हमारे फोन तो आपने काटा, काट के आप भागे और बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हाँ, मैं तो बहरहाल आप मुझे ये बताइए, आपने झूठ क्यों बोला क्या कि तुम मुफ्ती हो? किस बात से आपको साबित हुआ कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ? भाई तुमने कहा ना जाहिल हो तुम। अरे बेवकूफ, देखो खुद को। तुम्हें तो कहा कि जाहिल हूँ। देखो अभी कहा है कि मैंने आलिम नहीं हूँ, मैं जाहिल हूँ। मैंने ये नहीं कहा मैं आलिम नहीं हूँ, मैंने कहा मैं जाहिल हूँ। हाँ, तुमने कहा मैं जाहिल हूँ। मैंने नहीं कहा मैं आलिम नहीं, मैंने कहा मैं जाहिल हूँ। हाँ, आलिम में क्या? अभी तुम्हें पता ही नहीं है, अभी तुम्हें पता ही नहीं है कि जाहिल ये बता रहे हो। वही तो कह रहा हूँ, तुम बताओ ना। मैं समझ गया, जाहिल किसे कहते हैं? जाहिल हुए जहल हुआ। नहीं मालूम है तो बता दो जाहिल किसे कहते हैं, मैं बता दूंगा। तुम कह रहे हो, तुम बताओ ना अपने बारे में। अपनी तो तुमने तो खुद कहा था कि तुम जाहिल हो। तुमने तो अपने आप को बताया था कि हाँ मैं जाहिल हूँ। तो तुम जाहिल जानते हो किसे कहते हैं? बताओ ना, तुम जाहिल किसे कहते हो? चलो बताओ किसे कहते हो आप जाहिल? नहीं जानता हूँ, तुम बता दो। मैं नहीं जानता, फिर मैं बता दूँ। ये बताओ, आपको मालूम है जाहिल किसे कहते हैं? तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तुमने कहा ना। नहीं, मैंने तो बताया, मैंने तो सोचा कि मैं जाहिल हूँ, लेकिन आपको इश्कार हो रहा है जाहिल, इसका मतलब आप जानते नहीं हैं। तो कहते मैं नहीं जानता हूँ जाहिल किसे कहते हैं। अरे यार पागल हो क्या? किसे कहते हैं? इस कदर पागलपंती की हद भी होती है तुम्हारी। हाँ, यही हद होती है कि जब इल्म नहीं होता है तो यही पागलपंती कही जाती है। इसीलिए जब आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम, साफ कह दिए मुझे नहीं मालूम है जाहिल किसे कहते हैं, मैं बता दूंगा अभी। जाहिल तुम बताओ ना, तो कहे तो मैं नहीं जानता हूँ। अपनी शनाख्त पहचान बताओ तुम। मैं शनाख्त बता रहा हूँ, आप कह दीजिए मैं जाहिल के माना नहीं जानता हूँ। अच्छा, वाकई आप मुफ्ती है? नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अच्छा, जाहिल का माना नहीं पूछ रहा हूँ मैं, जाहिल का माना नहीं। पहले दोनों आदमी लड़ लीजिए, पहले दोनों आदमी बात कर लीजिए कि कौन मुझसे बात करेगा, फिर बात कीजिए, ठीक है? मुझे बता दीजिए, क्या वाकई आप मुफ्ती हैं? बात कर लीजिए, मुझसे बात कौन करेगा? क्या वाकई आप मुफ्ती हैं? पहले दोनों आदमी आपस में बात कर लीजिए। आप बता दीजिए क्या आप वाकई आप मुफ्ती हैं? बोलिए। आप पहले दोनों आदमी बात कर लीजिए। क्या वाकई आप मुफ्ती हैं? बता दीजिए ना मुझे। बता दीजिए कि आप दोनों में से कौन मुझसे बात करेगा? क्या आप वाकई मुफ्ती हैं? मैं बात करूंगा। चलिए, मैं अभी मैं बात कर रहा था, अब मैं दूसरे को इख्तियार देता हूँ, लेकिन एक आदमी बात करे, कौन करेगा फैसला कर लो। चलो जनाब, बात तो मैं ही कर रहा हूँ ना, बात तो मैं ही कर रहा हूँ ना। मैंने आपको बोला था कि बात मैं ही करता रहूँगा। लड़ लो, पहले दोनों आदमी पहले बात कर लो। आप बताओ कौन मुझसे? मुसलमानों, फैसला आपको करना है, देख लो, बकरी उधड़ गई इतनी ही देर में। हाँ नहीं भाई, आप जी, मैंने शुरू में कह दिया कि मैं उससे बात करने तैयार हूँ जिसने ये दावा किया है कि मुझसे कोई देवबंदी बात नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। से अगर ये आप लफ्ज इस्तेमाल करते तो मैं तैयार था।
मैं तो अपने नबी की बात कर रहा था, और जो तुमने दलील मांगी वो दलील भी पेश की, और भी करूंगा। कर लीजिए, कौन मुझसे बात करेगा, फिर मैं आप लेता हूँ। हिम्मत नहीं है मुफ्ती साहब, तुम्हारी पूरी दुनिया देवंदत में किसी देवंदी औरत को ऐसा मुफ्ती पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात कर सके अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने आप को हक पर साबित कर दे। ये मेरा दावा, ये मेरा चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है, दावा नहीं है कि मेरे कबर से निकल के मुझसे आगे बात कर ले। तुम जैसे क्या तमीजी तो मत कर, वरना आंधी नौदिया बैठनी गंगोई को क्या बात करेंगे, सबको जो है ना मतलब के अंदर ताकत नहीं इतनी। जी, ये लड़ाई पे आ गया, ये लड़ाई पे आ गया, लड़ाई पे नहीं आ गया, लड़ाई पे आ गया। मेरी बात सुनो, तुम जब दूसरे को कहोगे सुनोगे, मुफ्ती है, सुनोगे, जब कहोगे तो सुनोगे। अरे ये जाहिल है, मुफ्ती नहीं है, जाहिल है। नहीं, इसने कुछ कह दिया जाहिल है, ये जाहिल है, मैं तो जाहिल ही कहूँगा। अभी तो कह रहा फोन नहीं काटूंगा, हार गए, कह रहा मैं पूरी रात कर दूंगा। अब क्या हो गया, फोन काट करेगा? अरे तू बात करेगा तो क्या करो, प्यार से बात कर, तसल्ली से बात कर। बात करेगा? सुनो मैं बात करूंगा इससे। पहले तुम मेरी ही बात हो रही है, मेरी बात। मुफ्ती मैं बात करूंगा, मुफ्ती मैं बात करूंगा, मुफ्ती मैं बात करूंगा। दोनों बात कर लो, कौन बात करेगा, फिर मैं बीच में बोलने नहीं देगा, कोई मैं बात करूंगा। एक ही आदमी बोलेगा, दूसरा बोल, सुन लीजिए, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। दूसरा अगर बोल दिया तो ये समझा जाएगा कि आप हार गए। अरे हजरत मेरी बात पूरी होने दो, बात खटाई में पड़ जाएगी, मेरी बात पूरी होने दो, आप खामोश रहो, बाद में तुम्हारा नंबर दिया जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला शख्स मुसलमान ही है या काफिर हो जाएगा? आप इसको फिक्स कर जो हमारी पूरी बात थी, तो आप उनका फोन काट दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना चलाक है यार, ये कितना चतुर और चलाक है। आप मुझसे हार चुके हैं, कितना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कितना चतुर और चालाक बन रहा है, चालाक कितना चतुर और चालाक बन रहा है। अच्छे अच्छों की बखें उधर जाती है। अभी तो दो चल रहे हो, दोनों की हालत खराब है, दोनों की हालत खराब है। अरे पहले अपना इस टॉपिक को तो पूरा कर ले, बाद में। अरे नूर हसन से बात करना खेल नहीं है बच्चों का, समझे? नूर हसन से बात करना ये खेल नहीं है बच्चों का, और बात करके नूर हसन से तेल निकल जाता है देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े अच्छों का। अरे मैंने तो पहले कह दिया, तुम्हारे इससे कहने के पहले मैंने कह दिया कि तुम्हारे जो लड़ाई पे आ गए, हैं अहमद रजा, तुम तो लड़ाई पर आ गए, तुम तो बदतमीजी पर आ गए, तुम तो गर्मी पे आ गए। अरे इसे तो फाइनल कर पहले, इसे फाइनल तो कर। मेरी बात तो बताओ, मैंने आपके नबी की बात की है, दोनों में से कौन बात करेगा? मैंने आपके नबी मेरे नबी की बात की है। तुम रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हो ना, कौन बात करेगा? तुम दोनों में इतना आपस में इतना इख्तलाफ है, तो दूसरे क्या? वो खामोश है, ताहिर भाई बिल्कुल खामोश, ताहिर भाई बिल्कुल खामोश, लॉक लगा लो बस। मेरी बातों का जवाब दो मुफ्ती अमजद कासमी देवबंदी साहब। आप सुन लीजिए, आपके नबी मेरे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो तौहीद करे वो मुसलमान है या काफिर है? पहले आप सुन लीजिए, अगर उनकी आवाज आ गई तो ये समझूंगा कि आप मुझसे हार गए। अरे यार कहाँ के उसूल लेके आ रहे हो? वही है कि मैं दो आदमी जिसको मारना नहीं होता वो बल्ली उठाता है यार। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, समझा? तुमने दावा किया था, जिसने दावा किया मैं उससे मैंने उनको छुपा तो दिया जनाब, मैंने उनको छुपा तो दिया। और ये उसूल कहाँ का है जो तुम बना रहे हो? ये कहाँ का उसूल है जो तुम बना रहे हो? ये कहाँ का उसूल है जो तुम बना रहे हो? ये आप कह दीजिए कि अगर वो बोलेंगे तो मैं हार गया। लाजिम मुझे ये बताइए कि आपके नबी जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हो, यानी मैं कहा ना पूरी रात आपके लिए। अच्छा, कितनी मोहब्बत करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा या अपनी जान से कम? एक मिनट, अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हो या अपनी जान से कम? आपको इतनी अच्छी सी हल्की सी बातें समझ में आ रही है कि मैं समझना चाहता हूँ। कोई दूसरा बोलेगा तो मैं समझूंगा कि आप हार गए, फौरन आप कहते हैं हाँ मैं हार गया। ताहिर भाई खामोश है ना, इसके वादे पे अटल रहना बस। आप पहले सुन्नत की लाज रखें। आप कहिए नूर हसन जी, आप कहिए। आप अपने तरफ से म्यूट लगा लें, आप अपने तरफ से म्यूट लगा लें, अगर बोलोगे भी तो आवाज नहीं आएगी। आप नूर हसन भाई बता दीजिए कि अगर किसी की आवाज मेरे अलावा आई तो मैं हार गया। हाँ, मैंने इनसे पहले ही कहा था कि नींदें उड़ जाएंगी तुम्हारी। बेटे रात नहीं, पूरा जब तक बात करोगे ना तैयार हूँ मैं। प्यार मोहब्बत वालों से बात करता हूँ, जो लायानी बातें करने लगते हैं फिर मैं उनसे बात नहीं करता। दोनों के अंदर जब तुम दोनों के अंदर इत्तेफाक नहीं है तो तुम दूसरे को क्या बेटा ना है, तू बात कर, तू अपना खुद बेटा नहीं है। देखो कुछ बात ऐसी मत करो ताहिर भाई, कुछ भी ऐसी बात मत करो, ये भागने नहीं दूंगा सही से। बेटा कर रहा कहने दो, जो कह रही है वो कहने दो, वो जो जा रही है कहने दो बस।
तुम खामोश हो जाओ, मैं इसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि दुनिया देवबंदियत याद रखेगी। तो मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ म्यूट कर दो उधर से, बिल्कुल म्यूट करो। अब कह दो इस चीज को, कह भी दो, आगे कह भी दो। खामोश, कोई बोले पहले मेरी बात पर बात दो। ये कोई उसूली नहीं है, ये कोई उसूली नहीं है, ये कोई उसूली नहीं जो तुम बना के लेके आ रहे हो। तो कौन सा उसूल तुम्हें? अब तुम मुझे ये बता दो कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हो कितनी करते हो, अपनी जान से ज्यादा या अपनी जान से कम? सुनो सुनो, उसूल बना लो फिर उसी पर लड़ना। सुनो, अगर या तो उन्होंने बोल दिया, मैं कह रहा हूँ उन्होंने बोल दिया तो आप हार जाएंगे, आप कह रहे हैं उसूल नहीं। मैं क्यों? हाँ ये उसूल ही नहीं है, कहाँ का उसूल है? तुम बता दो कौन सी किताब में ऐसा उसूल लिखा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा था कि तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेगी, कोई जरूरी नहीं है उसूल। आप उसूल बता दो। तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेगी, हर चीज की लिखी, तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेगी। अरे आप कह दो ना, तुम्हारे कहने से थोड़ी चलेगी, आपके कहने से चलेगी। मैं तो कह रहा हूँ आप बता दो। नहीं ये उसूल कहाँ का है? कोई देवबंदी ये एक मिनट, तो ये दूसरे देवबंदियों के लिए भी उसूल होना चाहिए। अरे अगर इस तरह का आप कहोगे, अरे एक लाइन पर रह के हमारी कई लोगों की बात होती है, कई देवबंदी भी होते हैं, कई सुन्नी बरेलवी भी होते हैं, तो सब बोलते हैं। क्या कही थी मैंने? टॉपिक क्या दी थी आपको? मैंने टॉपिक ये दी थी कि आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी और से। फिर वही बात, मैं ही तो बात कर रहा हूँ, मैंने छुपा दिया उधर। अब आप ये बताइए कि मेरे और आपके नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं जवाब दूंगा भाई, सुन लो तो जवाब दे दीजिए जो मैंने पूछा है। मेरी बात सुनिए, अगर आपका मेरा मुआहिदा नहीं समझ में आ रहा है तो आप ही कोई मुआहिदा पेश कर दें जिस पर हम दोनों अमल करेंगे, फिर बात चलती रहेगी। मैंने उधर छुपा दिया ना, वो खामोश है, वो खामोश ही रहेंगे इंशाअल्लाह जब तक हमारी बात रहेगी। नहीं, मुझे पता है, मुझे इस बात पर भरोसा नहीं है। आप या तो ये मेरी बात मान लें, या तो आप भी कोई बात पेश कर दें, उसको मैं अगर नहीं मानूंगा तो मैं। चलिए ठीक है, मैं इस बात को कह रहा हूँ, ताहिर भाई की अगर उधर से आवाज आ गई, ठीक है, भले सुन्नी बरेलवी जो भी फैसला ले वो ले ले, मैं फोन काट दूंगा तेरा। अच्छा काट दूंगा, ठीक है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, आपको हाथ तस्लीम कर लूंगा। मैं हाथ पे सलीम, तो दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ देवबंदिया का जो मुझे शिकस्त दे दे। कह दो ना, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई देवबंदी, किसी देवबंदी औरत में बच्चा ही नहीं जाना जो नूर को शिकस्त दे दे। आवाज आ गई, लो आवाज आ गई, लो आवाज आ गई। तुम अभी कहे आवाज नहीं आ गई, आवाज आ गई तो तेरे तरफ से आई होगी ना, मेरे तरफ से तो आवाज थोड़ी आई। कोई है ही नहीं यहाँ, मैं इतने तरह अकेला, तुम्हारे यहाँ से आवाज आई है, दोबारा सुन लो। अगर मैं कह रहा हूँ जो नूर हसन को शिकस्त दे दे, ऐसी किसी देवबंदी औरत ने बच्चा पैदा नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह को शिकस्त देने के लिए अहमद रजा खास जो है, मैं यहाँ तुझे शिकस्त और ये देने पहने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हक और बातिल पर साबित करने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं तुझे जलील करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ मुसलमानों को एक जहन देने के लिए बात कर रहा हूँ। जिस नबी की तू मोहब्बत की तारीफ कर रहा था कि मैं अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी तारीफ की जाती है, तौहीन नहीं की जाती। जब तारीफ की जाती है तो कोई तौहीन करे तो तौहीन सुनी भी नहीं जाती है। हुजूर अल्लाह की शान में तौहीन करे वो मुसलमान है या काफिर है, बस इतना जवाब दे। मैं सब जवाब दूंगा। पहले एक बात कन्फर्म कर लीजिए, उसी बात पर सारी बात चलेगी। उसके बाद मैं अगर फोन, तूने कहा था कि जो चाहो वो बात करो, क्या करो? तुमने कहा था ना कि जो चाहो पूछो, मैं बात करूंगा, मैं जवाब दूंगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके नबी हुजूर मोहम्मद, आपके नबी, मैं आपसे तनहा बात कर रहा था तो आपको दूसरे लग गए, तीसरे लग गए, तीन लग गए मेरे। अरे मेरे पास इतने फोन आते हैं भी, तुझे मालूम क्या यार मुफ्ती अमजद? मुझे जरूरत नहीं है, मुझे फोन, आपने मुझे बताया नहीं कि कितना फोन आया, और आपसे मैं कहा आपसे बात करने के लिए, मैं दूसरे तीसरे से बात करने के लिए तैयार हूँ, बात करूंगा। हम पहले से ही दो लोग मौजूद थे, यार तुझे क्या पता? बताए होते मुझसे। अच्छा तुमने मुझे कॉल किया, एक मिनट, तुमने कॉल किया था, बिजी आ रहा था कि नहीं? खुदा की कसम खा के बोलो हाँ नाम है। अरे मैं कह रहा झूठ बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं आ रहा था, मैं आ रहा था ना, बिजी आ रहा था ना, मैंने क्या कहा? तुम बिजी आ रहा था ना, आना में जवाब, बिजी आ रहा था ना, नहीं मैंने क्या, बिजी आ रहा था ना, बिजी आ रहा हूँ, चाहे कुछ बिजी आ रहा था ना, अरे बार बार तुम कॉल कर रहे थे ना, तुम जब कई बार कॉल कर चुके तब मैंने जाके जिशान भाई से कहा कि यार कोई बंदा बार बार कॉल कर रहा है, मैं रिसीव करता हूँ, कौन है? जब तुमने कहा कि देवबंदी हो, मैंने कहा जी कॉल कट कर दीजिए, मैं अभी बात नहीं करूंगा। तुमने जो है बात करने की जिद करी। जी जिद, अभी जिद कर रहा हूँ। हाँ तो बात आप मुझे ये बता दीजिए कि आपके नबी की शान में, आप अपनी बात सुनिए, आप अपनी बात पे अटल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसी पर अटल हूँ, मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि आपके नबी की शान में जो तौहीन करे वो मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? सुन लीजिए, आप अपनी बात पे अटल है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल। इस बात पर कि अगर उनकी आवाज आ गई तो मैं अपने आप को हार मान लूंगा। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये कौन सी बात है कि उधर से आवाज आ गई तो शिकस्त मान लेंगे, ये वो, ये कोई उसूल ही नहीं है जनाब, इतनी छोटी सी बात कर, ये कोई उसूल ही नहीं है, ये कोई उसूल ही नहीं है, और कोई उसूल नहीं है, वो हो जाए। ये कोई उसूल नहीं है। दुनिया देवंदियत में अभी तक किसी देवंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात करके अपने आप को सही साबित कर दे, हक पर साबित कर दे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंदियों के चार अकाबिर को काफिर साबित कर चुका हूँ और करता रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं तो तुम्हारे अहमद रजा खां को साबित कर रहा हूँ काफिर फौरन। अब बोलो, करो है? बोलो, करो करो करो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अहमद रजा खां के बारे में, जब तुम अगर मेरे चारों को काफिर साबित करते हो, मैं तुम्हारे को काफिर साबित कर रहा हूँ, तुम उसको अलग कर दो कि नहीं काफिर है? करो, दलील दो, क्या दलील दो, दलील पेश अलग करो, हो गए, दलील पेश करो, दलील। बात से हट रहे हैं। तुमने कहा था कि मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। हाँ, पहले तुम यहाँ झूठे हुए, यही तुम यहाँ झूठे हुए। आ गए, दूसरी बात, आ गए, यही बात। अरे तुम झूठे नहीं हुए क्या? तुम झूठे नहीं हुए क्या? तुम झूठे नहीं हुए क्या? चाह रहा था कि अभी तुम भूल दुनिया देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे, अपने चार काफिरों को मुसलमान साबित कर दे। अरे तुम तो नूर हसन का जो दावा है, जो वादा, अल्हम्दुलिल्लाह वो अटल है अपनी जगह। ऐसे नाचने और गाने से दुनिया देवबंदियत में अभी तक किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो नूर हसन से बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दे, देवबंद के चार काफिर मुल्लाओं को हक पर साबित कर दे या मुसलमान साबित कर दे। ऐसे 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 चलिए आज अब मैं एक और नई बात कहने जा रहा हूँ। दिल संभाल के, जिगरा जो है थाम के मेरी बात सुनो। थानवी के ओरिजिनल बाप का नाम बताओ, 1 लाख रुपए का नगद इनाम लो। क्या? थानवी के ओरिजिनल बाप का नाम बताओ जिससे थानवी पैदा है, 1 लाख का इनाम लो। तुम 1 लाख नहीं, मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा। लाओ नहीं, लाओ लाओ, सुन लो मेरी बात पहले सुन लो। एक नहीं, मैं तुम्हें 50 करोड़ दूंगा। तुम ये साबित कर दो, सिर्फ इतनी बात साबित कर दो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आप कहते हो कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा मोहब्बत हम करते हैं। ये अपने दावे से अलग भाग रहा है। इसने कहा कि नहीं तुम सवाल करो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। देखो मुसलमानों, फैसला आप लोग को करना है। ये दोनों रिकॉर्डिंग में एक साथ मिला के डालूंगा इंशाअल्लाह। तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बंदे ने कहा था आगे अपनी हकीकत में, इस बंदे ने कहा था मैं बात करूंगा, तुम बात करो, जो चाहो वो बात करो। मैंने कहा तुम जिस मौके पर चाहो वो बात करो, मगर इसने कहा कि नहीं नहीं, जो तुम पूछोगे मैं उसका जवाब दूंगा। देखो मुसलमानों, तुमने जो तर्जुमा किया था वो आयत पेश कर दो। तुम्हारे नहीं, तुम्हारे 7 जन्म में तुमने, मैंने तो अपने नबी की बारगाह का अदब सिखाया, अदब दिखाया कि मेरे रब ने मेरे महबूब की शान का क्या मकाम मर्तबा मेरे नबी का रखा है। अपने सहाबा को आयत तर्जुमा कुछ करो और आयत कुछ पेश करो, तर्जुमा कुछ करो, आयत कुछ करो, दुनिया को गुमराह करो। वाकई तुम जाहिल हो, वाकई तुम जाहिल हो, मुझे यकीन हो गया। उसके बाद जाहिल मैं के बावजूद तुम्हारे आयत को वाकई जाहिल हो, तर्जुमा कुछ करते हो। नहीं नहीं नहीं, वाकई जाहिल हो, वाकई जाहिल हो। मैं तो जाहिल हूँ, वाकई जाहिल हो, बता रहा हूँ। मुसलमानों ये देखो, देवबंद का जाहिल मुफ्ती पेश करते हो। ये आपके सामने क्या दावे कर रहा था, ये आपके सामने क्या दावे कर रहा था। मैंने इससे कहा था कि तेरी नींदें उड़ जाएंगी, तेरी नींदें खराब हो जाएंगी। और एक बात ध्यान में रखना मुसलमानों कि यहाँ मेरे बाप की बात नहीं है, आपके बाप की बात नहीं है, यहाँ रसूल पाक की बात है, अल्लाह के महबूब की बात है। हाँ, क्या बात? यहाँ पे जनाबे हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है कि जो रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करे वो मुसलमान है या काफिर है। इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि वो काफिर है या मुसलमान है या क्या है, ये जवाब नहीं देगा, क्योंकि इसे काफिरों से मोहब्बत है, क्योंकि इसके 4 मुल्ला काफिर हो चुके हैं मेरे नबी की शान में तौहीन करके। अब अच्छा ये बताइए, आपने कहा था कि जो तुम सवाल करो, मैं इस टॉपिक को यहीं खत्म करता हूँ। मत बताओ कि रसूल पाक की शान में तौहीन करने वाला काफिर है या मुसलमान, मत बताओ, मैं नहीं पूछना चाहता। अब दूसरा सवाल कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम सवाल करो और मैं जवाब दूंगा, और मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और दूसरा रहमतुल्लिल आलमीन है का यहाँ पे? तुम दोबारा सवाल करो जो सवाल किए थे। नहीं, अब नहीं करना है, नहीं अब कर रहे नहीं करूंगा। सवाल करो ना, दोबारा सवाल करो ना। अब मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, उस सवाल पे तुम्हारा जवाब ही नहीं निकला, तुम्हारा जवाब ही नहीं निकला। तुम पहला सवाल करो। देखो मुसलमानों, जिद कर रहा है कि वही सा सवाल करो, मैं तो इसको फिर तुम वही सवाल करो, उल्टा टांग दूंगा। ऐसे मुफ्ती से कितना 36 बात है, ऐसे मुफ्ती
गलत आयत पेश की, तो तुम दोबारा सवाल करो, वो सवाल दोबारा करो। मैं कह रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर है, ये पूछा था मैंने तुमसे। तुमने कहा कि रसूल पाक की शान में तौहीन करने वाले बहुत है, मगर रसूलुल्लाह ने कभी फतवा नहीं लगाया, तुमने ये कहा था। तो मैंने कहा कि मैं रसूल पाक का अदब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद से आप मुराद क्या लेते हैं? तौहीद से आप मुराद क्या लेते हैं, मुझे ये बता दीजिए। तौहीद या तौहीन? तौहीद से। वाकई जाहिल हो, जिसको नाम ना लेने आता हो, तौहीन है या तौहीन है या तौहीद है। अरे यार वाकई जाहिल हो, अब मुझे यकीन हो क्या कि तुम मुमकिन नहीं हो, वाकई जाहिल हो। अपने कान को साफ करा लो, अपने कान को साफ करा लो। मैं क्या कह कान नहीं होता है, कान होता है लल्ला। क्या होता है? कान कान। और क्या, और मैं क्या कहा हूँ? अरे यार क्या पता क्या क्या बोल लिया है। सही करा लो, कान सही करा लो, कान अपना। बहरहाल तू बता कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर है? तुझे काफिरों से कितनी मोहब्बत है यार, तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही कि वो काफिर है। मैं फिर कह रहा हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल ने ये कहा था। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान है या काफिर है रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने वाला, बता ही नहीं रहा। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर यह कहा था, अगर मैंने किसी को कुछ भी जर्रा बराबर भी तकलीफ दी है तो मुझसे बदला ले ले। इसका क्या मतलब था? वो काफिर था? बताइए ना, हो गया। अरे मोहरे नबूवत चूमना उनका मकसद था, मोहरे नबूवत चूमना उनका मकसद था। किसी ने मोहरे नबूवत चूमी थी ना, किसी ने मोहरे नबूवत चूमी थी ना, एक मिनट, किसी ने मोहरे नबूवत चूमी थी ना कि नहीं चूमी थी? अल्लाह के चूमी थी ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मुझसे सहाबी और तुम वहाबी, अरे तुम में और उसमें बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। अल्लाह के नबी के सामने जो ईमान लाए सब सहाबी, हमें सब पता है, आप ये बताने की कोशिश ना करें। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर है, बस ये बताइए। आप ही की बात पर जवाब दे रहा हूँ, इसी बात पर जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने जो ये बात कही थी कि आप जिसको मैंने तकलीफ दी है वो मुझसे आकर बदला ले ले, तो उन्होंने जब आप खड़े हुए और वो खड़े होकर कहा कि हाँ आपने मुझे मारा, तो तकलीफ दी नहीं दी? नहीं, वो खुद बता रहे हैं कि या रसूलुल्लाह वो फूल की तरह था, फूल की तरह, मुझे चोट नहीं आई, तकलीफ नहीं आई। उन्होंने तो खुद ही बताया ना वहाँ। अरे मोहरे नबूवत चूमना मकसद था कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत को चूम लूं। अरे बोता लिया था कि नहीं लिया था? पागल आदमी, पागल मकसद जो सवाल है वो जवाब। मैंने जो पूछा उसका जवाब दो मुफ्ती साहब। हमारी जहालत का लोग अंदाजा लगा लेंगे इंशाअल्लाह। यही लगा लेंगे कि गा गा के बोलेंगे, यही इंशाअल्लाह। तुमसे मैंने कहा था कि अभी बात ना करो वरना तुम्हारी साल भर की नींदें भी खत्म हो सकती है। और दुनिया देवंदियत का झूठ न बोला जाए, बेशरम लोग ना हो तो धर्म नहीं चलेगा। बेगैरत लोगों से धर्म चल रहा है। थानवी अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं था, उसके पैदा करने में किसी और का हाथ था, क्योंकि थानवी का बाप तो पहले ही मर चुका था। तुम्हारे हम पेशवा कुछ नहीं समझते, तुमको क्या समझेंगे बताओ ना। फोन मैंने बहरहाल तो मुझे समझे ना समझे, मुसलमान इसका फैसला कर लेंगे इंशाअल्लाह। फैसला मुसलमान इसका फैसला कर लेंगे कि तेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि रसूलुल्लाह का दुश्मन मुसलमान है या काफिर है। रसूलुल्लाह की शान में तौहीन कौन करेगा? रसूलुल्लाह का वफादार तौहीन करेगा या रसूलुल्लाह का गद्दार तौहीन करेगा? तुझे इतनी बात समझ में नहीं आ रही? तुम्हें इतनी समझ में आ रही है कि तर्जुमा तुम कुछ करो और मुसलमानों देखो ये कितना बड़ा शैतान है, दज्जाल है, मलऊन है। ये मेरे नबी का कितना बड़ा गुस्ताख है। ये तो दावा कर रहा था कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा कितनी मोहब्बत करता है? तो कहता है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर मैंने कहा तो उलमाए देवबंद से ज्यादा मोहब्बत करता है या रसूलुल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है? तो उलमाए देवबंद वालों से भी ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से करता हूँ। मैंने इससे पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला शख्स मुसलमान है या काफिर है? बस इस पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। यही उस टाइम से, अब सुन लो, उस टाइम से यही बात चल रही है। मैं यही पूछ रहा हूँ। सुनने का भी जज्बा रखो, सुनने का भी जज्बा रखो, कुछ सुन भी लो, सिर्फ गाया नहीं जाता है, ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायने से मना किया है, पता है कि नहीं माना है? अल्लाह के नबी। तो फिर तेरा कारी हनीफ अंधेला इतना गा गा के क्यों पड़ता है? मुझे जवाब दे, मना किया है तो कारी हनीफ अंधेला पाकिस्तानी
क्यों इतना पर बढ़ाता है, क्यों गाड़ आगे पड़ता? चल जवाब दे। हैं? क्या? हाँ जवाब दे। तेरा कारी हनीफ अंधाला पाकिस्तानी देवबंदी जो आंखों से अंधा था, हाँ, वो क्यों गाड़ आगे पड़ता था? जवाब दे अभी इस बात का। क्या आगे पड़ता था? हाँ, मैं, आप अपनी टॉपिक पर मुंह में बरेली का बात ठूस दूंगा, तू मुझे जानता नहीं ठीक तरीके से, समझा? मुझे तो जानता नहीं ठीक तरीके से। मैंने कहा था ना कि सिर्फ एक ही बार मुझसे कोई सही से बात कर पाता है, तुम्हें यही समझा? एक ही बार कोई सही से बात कर पाता है। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होती मुझे बात करने की मुझसे। तुम्हें मैं यही जानता हूँ कि मैं ये जान रहा हूँ मुसलमान ये सुनेंगे, ये देखेंगे कहाँ ये कितना बड़ा शैतान है, मलऊन है, जिंदीक है कि ये रसूलुल्लाह के गुस्ताख को काफिर कहने से कितना कतरा रहा है। तुझे रसूलुल्लाह के गुस्ताख से कितनी मोहब्बत है रे? अबे तुम्हें हर बात का जवाब दूंगा। तुम सब कोई बात अभी तक जवाब ही नहीं दिया तुमने मेरी बात का। क्या? अभी तक तुमने मेरी बात का जवाब ही कब दिया? मैं कह रहा हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला शख्स मुसलमान है या काफिर है? जवाब दो। तौहीन का आपने मुझे जवाब दिया? बात इनका जवाब दिया? अरे मैंने कह तो दिया, जवाब तो दिया। मैंने जवाब दिया कि वहाँ मोहरे नबूवत चूमना थी, वहाँ मोहरे नबूवत चूमना मकसद था। अरे मोहरे नबूवत चूमना मकसद था वहाँ। अल्लाह के नबी फिर वही बात, जानते थे कि नहीं जानते थे? अरे पागल हो, कौन हो तुम यार? ये तो बताओ कम से कम। अल्लाह के नबी जानते थे नहीं जानते थे, ये कौन सा सवाल है? अरे मैं पूछता हूँ कि रसूलुल्लाह का गुस्ताख मुसलमान है या काफिर है? तुम्हारे मुंह से अभी तक आवाज नहीं निकली। मैं जवाब कितनी मोहब्बत है तुम्हें देवबंदियों से? मैं फौरन जवाब दे रहा हूँ। आप बता दो कि अल्लाह के नबी ये बात जानते थे कि वो महरे नबूवत चूमेगा या नहीं जानते? वही बात है। तुम ये बताना नहीं, तुम जैसे वो जानते थे या नहीं जानते थे, ये रसूलुल्लाह का मामला है, मुझे नहीं बताया ना। मुझे नहीं बताया ना। नहीं, आप वो जानते थे या ना जानते थे, ये तो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, ये तो अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। तो कैसे अरे साबित करते हो? अरे तो चूमी है ना, बाद में बोला है ना कि या रसूलुल्लाह मेरा इस तरह का कोई मकसद नहीं, और वो अल्लाह के रसूल है, वो अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं आए दुनिया में। वो रहमतुल लिल आलमीन है। पागल, कुरान पाक की आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। इस तरीके से सुनी भी जाती है। सुनो पहले, हमारी भी सुनो। तू सुनेगा ही नहीं ना, मैंने कुरान पढ़ा है, तू सुनेगा नहीं। पहले मैंने तर्जुमा नहीं किया था, तर्जुमा वो आयत नहीं पढ़ी थी, तर्जुमा कर दिया था, तो तू कह रहा था कि नहीं आयत पर अरे देव के बंदा, अब आयत पर तर्जुमा नहीं सुन रहा है। जो तुमने तर्जुमा किया था वही आयत पेश की थी। बोलो ना। मैंने अपने नबी की मोहब्बत की बात कही थी, वो भी कुरान पाक में है, वो भी दिखा दूंगा, वो भी पढ़ के बता दूंगा, मगर अभी वो मेरे जहन में नहीं आ रही है। एक आ गई ना, एक आ गई ना। चले जाओगे करोगे, जब दुनिया से चले जाओगे तब पेश करोगे। मुसलमानों, इसकी जिहालत का आप अंदाजा लगाएं, ये इससे काफिरों से कितनी मोहब्बत है। किया था वो आयत कब पेश करोगे? देखो, आदमी जिससे मोहब्बत करता है ना उसकी तारीफ करता है, ये काफिरों से मोहब्बत करता है, इसलिए काफिर को काफिर नहीं कह सकता। कौन कह रहा है? तुमसे मैंने कहा भाई, तूने अभी तक कहा है? अभी तक तूने बोला है कि रसूलुल्लाह का दुश्मन गुस्ताख जो है वो काफिर है? अभी तक तूने बताया? मुझे बता। हाँ, मैं आपने जो बात की उस बात को मैं कह रहा हूँ, आपने गलत बात की। तुमने जवाब ही नहीं दिया। मैंने पूछा, अच्छा तुम्हें रसूलुल्लाह के दुश्मनों से कितनी मोहब्बत है, ये बता दो भाई। बता दो, तुम्हें रसूलुल्लाह के दुश्मनों से कितनी मोहब्बत है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करे, वो मुसलमान है काफिर है? तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया मुझे। मुसलमानों फैसला करो, यही है देवबंदिया। अब मैं बता रहा हूँ मुसलमानों, देखो देवबंद के 4 काफिर पक्के काफिर। मौलवी अशरफ थानवी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों से तशबीह दी है, इसलिए वो काफिर है। और इनका मौलवी कासिम ननौतवी कहता है माज़अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो कोई दूसरा नबी को पैदा हो जाए हुजूर के बाद, कहता है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर पर कोई फर्क नहीं आएगा माज़अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ऐसा अकीदा रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा हो फिर भी खातमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फर्क ना आएगा, मुसलमानों बताओ फर्क आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये इस तरह काफिर है। अरे सुन भी लो। इनके मौलवियों ने कहा कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, तो बताओ जब खुदा झूठ बोल सकता है तो ये देवबंदी झूठ नहीं बोल सकता?
इसने अभी तक कितने झूठ बोल दिए। ये बोला मैं मुफ्ती अमजद कासमी देवबंदी बोल रहा हूँ, फिर बोला मैं जाहिर बोल रहा हूँ, फिर इसने कुछ और बात कह दी। फिर मैंने कहा चुप। फिर इसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला काफिर है या मुसलमान, तो इसने जवाब ही नहीं दिया। बताइए रसूलुल्लाह के दुश्मनों से कितनी मोहब्बत है इसको। मैं अब भी जवाब दे रहा हूँ तुम्हारे पास, फिर इंतजार ही कर रहा हूँ, फिर देख कैसा टांगता हूँ तुझे, जवाब दे, तुम्हारा ही जवाब दे, फिर देख कैसा टांगता हूँ तुझे, दे जवाब, दे जवाब दे, फिर कैसा टांगता हूँ तुझे। तुम्हारा तुमने जो आयत जो, अरे जवाब तो दे, जवाब तो दे, जल्दी से पहले जवाब तो दे। मैं जवाब दे रहा हूँ जो दे जवाब। तर्जुमा हुजूर की शान में तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर है? बात पेश कर दो, अपनी ही बात पेश करो जो तुमने हुजूर की शान में तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर है, जवाब दे। मैं जवाब दे रहा हूँ तो कह रहा हूँ, पहले तुमने जो आयत पेश की है, आयत का जो तर्जुमा किया वो आयत पेश कर दो। मैंने तुझे थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई बात जहन में नहीं भी होती है उतर जाती है और जहन में नहीं आती है बहुत देर तक। चलो तो मान लिया ना इस बात को कि तुम्हारे जहन से उतर गई है। अरे तो उतर जाना, ये कौन सी कोई बुराई की बात है क्या? आप जवाब लो। कोई बुराई की बात है क्या? आप जवाब लो। अब मान लिया ना, मैं ही मानवाना चाहता हूँ। वही बात, आदमी भूल जाता है, आदमी की फितरत है, भूलना आदमी की आदत है। तुमने भूल जाता है, कुरान पढ़ते पढ़ते भूल जाता है, देवबंदी भी भूल जाते हैं मस्जिद में। अरे हमसे भूलवाओ ना, हमारे सबसे पूछना। अरे कौन सी भूल जाना, कौन सी बुराई भाई, ये तो इंसानी फितरत है जिस चीज का। अरे भूल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसानी फितरत है। सुनो मेरी बात, भूख लगी हुई है और ये आदमी नहीं कहेगा कि हमको खाना नहीं खाना है। अरे पागल आदमी, मैंने तुझसे कितनी बड़ी बात पूछी कि रसूलुल्लाह की शान में तौहीन करने वाला मुसलमान है या काफिर है, तूने जवाब नहीं दिया। सुन लो, दे जवाब, इसी को तो चाहता हूँ, जवाब दे। सुन लो, तुमने ये कह दिया कि ठीक है मुझे याद नहीं है, मैं मेरे जहन से भूल गया, मेरे जहन से बात निकल गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि तुम जो दावा करते हो, तर्जुमा कुछ करते हो और याद नहीं है, यही आता, उसके अलावा कुछ नहीं आता बरेलियों को। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के अलावा कुछ नहीं आता। देवबंदियों को रसूलुल्लाह के दुश्मनों से बड़ी मोहब्बत है, काफिर कहने से बड़ा कतराते हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मनों से बड़ी मोहब्बत रखते हैं देवबंदी। सुनो, आप जवाब लो। किसी भी बरेली को कुछ आयत के अलावा कुछ नहीं याद होता। मैंने पूछा कि रसूलुल्लाह का दुश्मन काफिर है या मुसलमान, इसने नहीं बताया, ये इधर उधर दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा है। बता रसूलुल्लाह का दुश्मन काफिर है या मुसलमान? हमें जवाब लेना, जवाब दे। पहले सुन ले, कोई भी किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं पैदा हुई किसी बरेली में जो आयत कुछ पेश करे या तर्जुमा। मैं पूछ रहा हूँ कि रसूलुल्लाह का दुश्मन काफिर है या मुसलमान, जवाब नहीं दे रहा है, बार बार जवाब दे रहा हूँ, आपका चला जा रहा है। जवाब दे रहा हूँ, तेरा अहमद अली रज़ा खान मेरे पास आ जाए, उसको भी जवाब दूंगा। सुन जवाब। बदतमीज अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो वो काफिर है, लेकिन अगर उसका मकसद गुस्ताखी नहीं है, किसी चीज की वजाहत है, तो वो काफिर नहीं है। इस चीज को मानते हो? वजाहत तुम पेश कर दो मुझे, वजाहत तुम पेश कर दो। आपका इल्म थानवी जी की तरह है? वजाहत में पेश करता हूँ। एक मिनट, आपका इल्म थानवी जी की तरह है? सुनो, थानवी जी की तरह बराबर इल्म रखते हो? थानवी जी के बराबर इल्म रखते हो? सुन बे, थानवी जी के बराबर इल्म रखते हो? अरे गद्दार, सुन अब थानवी जी के बराबर इल्म मुझे देखो, तुमने कहा था दोनों तरफ से जवाब, तुम जवाब दोगे मुझे, मैं सवाल करूंगा, जवाब तुम दोगे, तो तुम थानवी जी के बराबर इल्म रखते हो? अबे सुन गद्दार, पहले सवाल सुनेगा। देखो मुसलमानों की आगे अपनी हकीकत पर, मैंने क्या कहा था कि एक बार बात करके नींदें उड़ जाएंगी। हाँ, और ये माना नहीं, वरना इससे हम बात नहीं करता हूँ। 11 साढ़े 11 होने वाले हैं। अरे बेटा 11:30 नहीं, यहाँ तू घड़ी देख। अबे चुकंदर, ये साले काफिर कहीं गए, तू बेटा क्यों बक रहा है? तू बेटा है? काफिरों का मेरा वालिदैन है, वो मोमिन है, तू है बलदुज़्ज़िना, तेरा खान भी बलदुज़्ज़िना है। वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है, वो उसका बाप पैदा होने से पहले नामर्द हो गया था, थानवी के पैदा होने से पहले। हाँ, तू अपने आप को साबित कर सकता है कि तू वलदुज़्ज़िना नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका बाप जिंदा उसे हरामी कौन के? अरे जिसका बाप जिंदा उसे हरामी कौन के? तेरे बाप का बाप थानवी का बाप, सुन, तेरा थानवी का बाप
नामर्द हो गया था, उसे खुजली हो गई थी, दवा खा रही थी, नामर्द हो गया था, उसके अंदर मर्दानगी नहीं रही थी। थानवी ने खुद अपनी किताब में ये बात लिखी है। तुमने क्या अभी कहा कि जिसका बाप जिंदा हो वलद ज़िना नहीं हो सकता। अबे हराम की औलाद, मैंने ये बंगूर की एक मिसाल कही, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनोगे, मैं वफादार रसूल हूँ, सुन, मैं वफादार रसूल हूँ, मैं मुसलमान हूँ, एक आशिक रसूल का बच्चा हूँ, समझा, और आशिक रसूल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आशिक रसूल होते हैं वो हरामी नहीं होते। अब सुन लो, तुमने अभी क्या आशिक रसूल हरामी, अरे वो मैंने बुजुर्गों की मिसाल दी है, शैतान के पुत्र। सुनोगे, तुमने क्या कहा? मैंने एक मिसाल दी है वो बुजुर्गों की, मैंने एक बुजुर्गों की मिसाल दी है, शैतान के पुत्र। बाद में देना। अबे तेरा बाप, तेरा थानवी, अबे अपने बारे में कहो। अरे तो वो तो लिख के मर गया ना, थानवी ने खुद लिखा है, थानवी ने खुद लिखा है, थानवी ने खुद लिखा है, थानवी ने खुद लिखा है कि वो हरामी है। थानवी के पैदा होने से पहले जितने भी बच्चे हुए वो मर गए, और फिर उसके बाद थानवी के बाप को खुजली हो गई, कुत्ते वाली खुजली, खुजा के परेशान था, खुजा के परेशान था, दवा मुझसे लेने दबा दे देता था, 2 से 3 महीने में खुजली साफ हो जाती। मेरे भाई अपनी बात से तू अरे 2 से 3 महीने में खुजली साफ हो जाती, बस यही। मगर उसने दवा खा ली, नामाज हो गया, अब क्या करे? अब न सूखी नहीं रही थी, सुन, न सूखी नहीं रही थी, न सूखी नहीं रही थी, अब सुनना, अबे न सूखी नहीं रही थी, पागल किसे कहेंगे? तो बड़े परेशान हुए। थानवी की नानी को पता चली ये खबर, चुपके फिर थानवी के नाना को उन्होंने बता दिया उसकी नानी ने, और फिर उसके दोस्त आए, अरे सुन ना मुर्तजा, सुन, जब मुर्तजा दोस्त आया उसका, तो उसने कहा कि मेरी बेटी को बच्चे नहीं है और इसका जो शौहर है वो नामर्द हो गया, अब वो इस काबिल ही नहीं रहा। तो उसने कहा कि नहीं, इसको 2 बच्चे होंगे और दोनों नसीब पर होंगे, दोनों नसीब वाले होंगे, किस्मत वाले होंगे। एक आलिम होगा, एक आलिम होगा, आबिद होगा, एक दुनियादार होगा। अरे बता रहा है, बताना। अरे हराम खोर वलदुज़्ज़िना ज़करुल हिमार वलीद इब्न मुग़ीरा इब्न तैमिया की नापाक औलाद और अशरफ हिजड़े की नाजायज औलाद। अच्छा बता, अशरफ हिजड़े की कितनी औलादें हैं? पहले अपनी बात का जवाब ले ले। तूने ये कहा मुझसे कि सवाल तू कर, जवाब मैं दूंगा। अबे बदबख्त कहीं के, तूने जो आपने तो राय फरारी कर रहा है, तू जवाब कर दे रहा है, तू तो राय फरारी कर रहा, बदतमीजी कर रहा, मुझे भी बदतमीज बुलवाने में आमादा कर रहा है, शैतान की औलाद है, मुझसे भी बदतमीज बुलवा दिया। अबे तू हराम खोर तो नहीं है? अबे हराम तू है, हराम खोर साले, सुअर खाता है क्या? अबे तू खाता होगा सुअर। तुम्हारे बाप जब अंग्रेजों की लड़ाई में लड़ रहे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो सुअर की बिरयानी बनवा के रशीद अहमद गंगोही के लिए लाया था, पादरी के लिए लाया था। कहता पादरी कहाँ हो? पादरी जी, वो कहता हो जी। हाँ, अरे तेरी किताब तज़किरतुर रशीद मेरे पास मौजूद है, अरे साबित कर देगा। अच्छा ये बता, अगर मैंने ये साबित कर दिया, जबरदस्ती से तौबा करेगा? बोल। सुन, मैं नहीं, अब इसी पर बात होगी। तूने 36 टॉपिक बदल दिए, तूने 36 टॉपिक बदल दिए। तुम हराम खोरों का ही मामला है कि तू हराम खोर है, तू जिना की पैदावार है, तू मोहल्ले वालों की मेहनत का नतीजा, तू जमातियों की मेहनत का नतीजा। तेरे अब्बा ने तेरी अम्मा को छोड़ के जमात में चला गया था और तेरी अम्मा ने मोहल्ले में मजे लिए थे, तब जाके तू साले पैदा हुआ था। अच्छा चल ठीक, हाँ, तब जाके साले तू पैदा हुआ, हराम की औलाद। अब तू फिर तो उसी पे आ जा कि रसूल पाक का दुश्मन मुसलमान है या काफिर है। जल्दी जवाब दे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गलत बयानी करे, जो किसी पर इल्जाम लगाए, वो अबे हराम की औलाद, तू मेरे नबी के ताल्लुक से नहीं बोल रहा है। अबे तुझ पे क्या करूं क्या ना करूं, बोल, तू ही जवाब दे, हराम के पिल्ले। तू जब गलत बयानी कर रहा है, तुझे बार बार समझा रहा हूँ कि नंगा कर दूंगा, चड्डी बदन पर ही छोड़ता हूँ मैं तेरे जैसा हरामी होगी। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ साले सुअर की औलाद, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं अभी, तो बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। पैसिया के बच्चे, बेगैरत औरत के बच्चे, हाँ, फाहिशा औरत के बच्चे, और फाहिशा औरत के बच्चे, और फाहिशा भैंसिया औरत के बच्चे, बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ। बता, मेरे नबी का दुश्मन मुसलमान है या काफिर है? बोल, मेरे नबी का दुश्मन मुसलमान है या काफिर है? देखो मुसलमानों, जितने बरेली हैं सब, मैंने क्या कहा? मैंने ये नहीं कहा कि थानवी हरामी ने मेरे नबी की शान में तौहीन की है। मैंने ये नहीं कहा कि कासिम ने तौहीन की है। मैंने ये नहीं कहा रशीद अहमद गंगोही ने तौहीन की है। मैंने ये नहीं कहा था। मैंने इस हरामी से पूछा था कि रसूलुल्लाह की शान में जो तौहीन करे मुसलमान है या काफिर है। इसे मालूम था
کہ یہ ہمارے 4 اکابر کتوں کو کافروں کو کافر ثابت کر دے گا، اس کو خود بولنا پڑتا ہے، اس لیے یہ کافروں کو کافر نہیں کہہ رہا ہے۔ مسلمانوں کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، بہت ہو گیا، اب میں اس کا بھی کال کٹ کر رہا ہوں، اور بس فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں کہ اب کرنا کیا ہے آپ کو۔ طاہر بھائی ذرا میوٹ کھولیے، مسلمانوں کو ذرا کچھ نصیحت کر دیجئے، بہت ٹائم ہو گیا۔ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں پوچھی نا، میں نے صرف یہی کہا تھا کہ آپ کے نبی کی شان میں، میرے نبی کی شان میں، اللہ کے محبوب کی شان میں کوئی بھی ہو، جو بھی توہین کرتا ہو، جو بھی توہین کرنے والا ہو، مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کے منہ سے آواز نہیں نکلی۔ سامعین حضرات، آپ اس ویڈیو کو پوری سنا اور خود فیصلہ کریں کہ ہمارے نور حسن بھائی نے اس سے کہا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اسے قرآن کی آیت بتائی کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز نہ بولے یا رائنا نہ کہو کہ تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمائی کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے، وہ انہوں نے نبی کی عظمت کی بنا پر، کہ نبی کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی ہے کہ نبی کے سامنے ایسا بولنا بھی منع کیا ہے، اتنا ادب ہے نبی کی بارگاہ میں۔ تو جو نبی کی شان میں گستاخی کرے یا نبی کی توہین کرے تو وہ مسلمان ہے کافر۔ تو یہ آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا اس آیت کا، تو یہ جاہل جو ہے پہلے تو اپنے آپ کو مفتی بتا رہا تھا، پھر کہنے لگا میں جاہل ہوں۔ اس نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے اس پہ زبان کھولی اپنی تو یہ ہمارے جو 4 اکابر ہیں چاروں کو الٹا لٹکا دے گا، وہ چاروں کا کفر کے گھاٹ ہی اتار دے گا۔ وہ کفر کے گھاٹ کو اترتے ہی رہتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی دیوبندی انہیں بیچاروں کو امن لینے ہی نہیں دے رہا، انہیں جہنم میں بھی یہ سکون نہیں ہے، وہ سکون جہنم میں ملنا ہی نہیں ہے انہیں، خیر انہیں چین نہیں لینے دے رہے۔ اب یہ بدتمیز ہے قرآن کی آیت پہ بھی آپ نہیں مان رہا، پہلے تو کہہ رہا تھا کہ قرآن کی آیت بتاؤ، آیت ہے اور تو مان بھی رہا کہ آیت ہے، تو مانتا کیوں نہیں؟ یہ تو انکار کر کے آیت نہیں ہے، کہہ رہا ہے نہیں آیت بھی ہے۔ اب آدمی کے ذہن سے نکل جاتی ہے کوئی بات، کبھی ایک دم یاد نہیں رہتی ہے، نہیں آتی ہے، پڑھتے یا کئی بار ایسا ہوا حضرت میں کوئی چیز پڑھتا ہوں نا، کئی بار حافظ قرآن حفظ جو موسم رمضان مبارک میں سناتے ہیں، بڑے بڑے حافظ، اچھے حافظ بھول جاتے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، متشابہ لگ جاتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، متشابہ لگ جاتا آدمی کو نہیں رہتی یاد، جنہیں یاد آئی انہوں نے بتا دی تو پھر بھی ماننا تیار نہیں۔ اسی کا ترجمہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اس کا بھی ترجمہ یہی۔ اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، جتنے بھی مسلمان ہیں، دوست ہیں، سب کو بولو شروع سے لے کے آخر تک اس آڈیو کو سنا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا جائے۔ کہوں گا میں سننے والوں سے یہی درخواست کروں گا، میری بلکہ درخواست ہے، عرض کر رہا ہوں اور درخواست بھی ہے میری، کہ میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں، اپنی ریکارڈنگ میں بھی کہتا ہوں، اس میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس آڈیو کو پوری سنیں، اور سننے کے بعد میں مسلمانوں میں کہتا ہوں کہ ان دیوبندی وہابیوں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرماؤ۔ اسلام سے ان لوگوں کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، دور کا بھی رشتہ نہیں ہے ان کا، اسلام کے نام پہ بدنما داغ ہیں، دھبا ہیں، کیونکہ نبی سے انہیں بغض ہے، نبی سے عداوت ہے۔ اب آپ خود یہ سن لیں، فیصلہ کر لیں کہ اس نے ایک مرتبہ بھی زبان نہیں کھولی، اور زبان تھوڑی سی کھولی تو پھر مکر گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بدلا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے، کیونکہ تیرا علم تھانوی کا علم ایک جیسا ہے، تو اس نے بات گھما دی، ایک دم وہاں سے گھما گیا ہے بات، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں ٹنگ جاؤں گا یہاں۔ تو آپ اور میں یہی جہاں تک یہ بات کر رہا تھا اس پہ، تو میں اس کو قاسم نانوتوی کی کتاب تہذیب الناس کا پھر سے حوالہ دیتا۔ اس نے لکھا ہے کہ انبیاء ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بطاقت مزامات اللہ کہتا ہے کہ مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ ایک کافر کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبیوں سے، انبیاء سے امتی بڑھ جاتے ہیں عمل میں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، علم کی بات کر رہا ہوں کہ انبیاء ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں، یعنی علم میں ممتاز ہوتے ہیں، یعنی بڑے ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، علم زیادہ ہوتا ہے، مگر عمل میں بسا اوقات اس نے کہا کہ امتی معاذ اللہ برابر بھی ہو جاتے ہیں، بڑھ بھی جاتے ہیں، بتائیے، مگر علم میں امتی زیادہ نہیں ہو سکتا، اس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ اور یہ پتا ہے میرے نبی کے علم غیب کو کیسے تشبیہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ جانور، پاگل، بچے، درندوں کے علم سے، علم غیب سے۔ تو بتائیے مسلمانوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں دونوں کی بات آپ کے سامنے پیش کر دی، وہ اپنے نبی کے دشمن کو کیا مان رہا ہے اللہ بہتر جانے، وہ کافر کو کافر ہی نہیں بول رہا، رسول اللہ کے دشمن کو کافر ہی نہیں بول رہا، پتہ نہیں رسول اللہ کے دشمنوں سے اسے کتنی محبت ہے، جانتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ہی منع کیا تھا، تیری نیند اڑ جائیں گی،
میں نے کہا جا کے سو جا, ورنہ تو سو نہیں پائے گا 8 دن تک. ریکارڈنگ بند کرو, ہیں بند کرو. اور بھی کوئی لائن پر ہے کیا؟ نہ, جی اچھا ذیشان بھائی, جشان بھائی ہیں. جی حضرت. اچھا آپ ہو ہی؟ میں بول رہا ہوں. ہاں اور یار بھیجا ہے وہ اس کا ہیں؟ کیا نام ہے؟ ارے یہ مفتی ہے, مفتی ہے یہ. ہاں مفتی بتا رہا تھا حضرت دعوے کے ساتھ. پہلا تو مفتی بتا رہا تھا میں آپ کو. میں اس کا نمبر ڈالوں گا, اس کا نمبر آ رہا ہے 63 87 28 86 93. 63 اس کا نمبر بتاتا ہوں, پھر سے یہ کال کرے گا. بتائیے نمبر بتاؤ. نمبر ہے اس کا 63 872 88 693. ٹھیک ہے, صبح کو پہلے ہاں پھر سے میں ادھر دوں گا. ہاں بالکل بالکل حضرت. چلو ٹھیک ہے سر, فون کاٹ دوں. سے بات نہ دیں. ہاں ارے یار کیا بھوکا ہوں, میری بات ہی نہ ہو پا رہی ہے. ارے میں بھوکا ہوں, کئی دن سے کوئی بات ہی اچھا نہیں. چلو میں ریکارڈنگ بند کرتا ہوں پھر. اللہ حافظ مسلمانوں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. کیا فیصلہ لیں گے, کیا ڈیسیژن لیں گے, یہ دونوں آڈیو ہیں, بہت لمبی ہو جائیں گی, مگر آپ سننا ضرور. اللہ حافظ. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.